مرزا جونیئر جیلمی کی ریسرچ پیپر. پٹاری کھول لما ذرا ایک منٹ. پٹاری تو بغیر کام چلنا کوئی نہیں اگے لگ گیا پتا تھوڑا. آئے ہائے چلو جی کہ ریسرچ پیپر تے پہلا ریسرچ پیپر پہلا ریسرچ پیپر آ گیا. دکھانا ہے کہ جا رہے ہیں آپ؟ میں وہاں نہ نہیں ذرا تھوڑا جا مینوں تھوڑا پٹاری تے کھولن دیو نا. پٹاری سپ پھر ہی نکلے گا. اچھا ایک منٹ ہے. اب وہ یہ دیکھیں پہلے ریسرچ پیپر میں یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی یہ نوٹ اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن و حدیث کا حکم ماننے میں ہی داخل ہے. یہ سورہ نساء کی آیت 115 سے یہ ثابت کر رہا ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے اگلی لائن سنو تو صحیح. چپ کر کے کھپ نہیں پائی دی اور سنتے لئی دے یار رولا تے نہ پاؤ بعد چ پا لیا تے کھپ جنی پانی ہوئے گی. پہلے گل سن بھی لئی دی ہوں اگلے بندے. آگے کہہ رہا ہے نمبر 2 اگر قرآن و سنت صحیح حدیث اور اجماع امت کی مخالفت نہ آئے تو قیاس یا اجتہاد کرنا بھی جائز ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 22,990 سے یہ چیز ثابت کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں یہاں پہ تو قرآن حدیث نہیں ہے, وہ اجماع اور قیاس کو بھی لے رہا ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ لہٰذا یہ قرآن حدیث کی کہ خلاف بات کر رہا ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. اب بتائیں کیا کر رہے ہیں. اور وہ کیلا کہہ رہا ہے ادھر اجماع تو ہوا ہی نہیں ہے, کوئی 4 بندوں نے مل کے کہا نہیں ہے کہ یہ ایسی بات ہے. اچھا یہ اجماع بھی نہیں ہے تو قیاس بھی نہیں, اس کو قیاس بھی نہیں کہیں گے. سننے تو صحیح نہیں, یہ قیاس بھی نہیں ہے. اچھا اجماع بھی نہیں اور قیاس بھی نہیں ہے. نہیں قیاس کا نہیں مسئلہ لیکن اجماع نہیں ہے کوئی بھی. آپ اجماع بھی نہیں ہے تو قیاس بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اجماع اور قیاس ہوتا کیا ہے؟ نہیں اجماع کا پتا ہے, جو کافی اجماع کرتے ہیں نا لوگ, مطلب کہ متفق ہوتے ہیں. اچھا جو کافی لوگ مل جاتے ہیں اس کو اجماع کہہ دیتے ہیں. ہیرا منڈی کے اندر بھی کافی لوگ مل کے زنا کاری کا اڈا انہوں نے کھولا ہوا, کیا وہ اجماع ہو گئے؟ مل کے لوگ جو میں خانوں کے اندر شرابیں پیتے ہیں کیا وہ اس کو اجماع کہیں گے؟ یہ کون سا قاعدہ کلیہ, یہ کون سی شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے؟ میں تو اسٹوڈنٹ بندہ ہوں سر. اسٹوڈنٹ بندے ہیں آپ؟ نہیں میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. 2 نماز کے فجر کے فرض پڑھنے کیسے پڑھیں گے؟ جس طرح پڑھے جاتے ہیں اسی طرح پڑھنے. مجھے نہیں آتے, سنائیں. سر جی پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنا دین پتہ ہے. جو چیز فرض ہے, نماز اللہ نے فرض کی ہے, وہ بھی آپ کو آتی ہے کہ نہیں؟ اجماع اور قیاس تو یہ فروعی چیزیں ہیں اور ان کے اصول و ضوابط اور اصول فقہ سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں, یہ بعد کی باتیں ہیں. نماز پہلے مجھے سنائیں, آپ نماز آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی سر وہ تو الحمدللہ آتی ہے. سنائیں 2 فرض پڑھنے ہیں, صرف 2 فرض, فجر کے 2 فرض کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو جس طرح پڑھے جاتی ہیں. وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں یار؟ نہیں مینوں ہوندے پے سنا دیو نا مینوں. ساڈیاں تے دکاناں ویسے بند ہو گئیاں, اسی تے مشرک کافر تے بدعتی تے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا کچھ بھی. ساڈیاں تے دکاناں بند ہو گئیاں. ہن تسی سانو سکھاؤ دین سکھاؤ, کنج سکھاؤ گے؟ نماز سناؤ مینوں, کنج پڑھدے ہو تسی لوگ؟ سر جی یہ تو بات نہ ہوئی ہے. یہ بات ہی نہ ہوئی, سوال کر لیا تو یہ بات نہ ہوئی. سر جی جو میرے نزدیک تھا میں نے بتا دیا. اب میں اگر غلط ہوں تو ظاہری بات ہے. وہ بھائی مجھے نماز نہیں آتی, سانو تسی اپنی جیل میں نماز سکھاؤ. کنج پڑھتے ہو تسی لوگ نماز؟ سانو نہیں ہوندی ہے تہاڈی نماز, سکھاؤ نا سانو کہ بھائی انج پڑھی دی ہے. ہاں شروع ہو جاؤ. سر جی اب آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں کہ جو ایپ ہوتی ہے نا جن کو لوگ ظاہری طور پہ بتاتی ہیں کہ یہ ایپ ہے, حالانکہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. او یار نماز, او بھائی نماز کا ہے, نماز فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں. 2 فرض پڑھ کے مجھے بتا دے نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. چلیں تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ ثابت یہ ہوگا کہ ہمیں آ جائے گی, ہمیں نہیں آتی تو ہمیں آ جائے گی بس. وہ بات ہے کہ ہم رفع دین کرتے ہیں تو آپ نہیں کرتے. اور شروع سے نماز رفع دین کر دیتے آتے ہی.
وہ سبھی کرتے وہ ہیں کیا طریقہ کیا یہ نماز کا بات پورا کوئی اس کی نماز کی کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں کہ نہیں, کوئی ضابطے قاعدے بھی ہیں کہ نہیں آپ لوگوں میں؟ سر میں کوئی اسٹوڈنٹ بندہ ہوں, میں کوئی او ادھر بھائی آپ نماز نہیں. پڑھتے ہو کہ نہیں, پہلے یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ یار جب اللہ توفیق دیتا ہے تو پڑھ لیتا جب ہوں, ہر جب زندگی میں اگر ایک نماز بھی پڑھی ہے, وہ جو ایک نماز پڑھی تھی وہ کیسے پڑھی تھی وہ بتا دو کہ میں نے ایسے پڑھی تھی. وہ تو جس طرح سبھی پڑھتے ہیں, جیسے یہ پڑھتے ہیں بات کا بتا دو, جواب نہیں سبھی ہے کیسے سر, پڑھتے ہیں یہ میری بات کا جواب نہیں ہے وہ سر. بتائیں تو صحیح. یار نماز فرض ہے, اللہ نے سوال کرنا ہے, اس کا پوچھنا ہے, قبر کے اندر سوال ہونا ہے, حشر میں سوال ہونا ہے. تو ہاں اللہ کا تو پتہ ہے, اللہ کو تو پتہ ہے ہر چیز کے اوپر, اس کا علم ہے کہ میرا بندہ نماز ہاں, کیسے وہ پڑھتا کیسے پڑھنی ہے بتائیں, مجھے نہیں آتی. ہماری تو دکانیں بند ہو گئی ہیں, ہم مشرک کافر بدعتی لوگ ہیں. اب ہمیں آپ تو دین سکھائیں کہ کیسے دین سکھائیں معذرت گے سے آپ؟ سر, اگر نماز نہیں آتی تو پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, او معذرت بھائی سے. آپ لوگوں نے سکھانی, ہماری تو دکانیں بند ہو گئی ہیں, آپ ہم پہ گلا نہ کریں. انجینئر صاحب اور ٹھیک ہے بڑے سر, انجینئر صاحب نماز مرزا کا تو قادیانی صاحب نے پابندی پہلے ہوتی ہے. دکان بند کی تھی, تو پھر چھوٹے مرزا صاحب نے آ کے دکانیں بند کر دی, تو یہ تو دکانیں ہماری بند ہو گئی ہیں. بڑے مرزا صاحب نے تو 150 سال پہلے دکانیں بند کر دی تھیں, چھوٹے مرزا صاحب نے 150 سال بعد آ کے دکانیں بند کر دی. یار ہماری وہ تو بڑا دکانیں ہی بند پھر ہیں. تو ہم اس لوگ وقت تو میں کافر کافر مشرک ہوں بتی ہیں. دوسرے کو. آپ لوگ اپنا دین ہمیں سکھائیں اب کہ کیا مطلب دین کیا ہے, یہ نماز کیا ہے. پہلے نماز سے بات شروع کرتے ہیں. جی یہ میرے سوال کا جواب نہیں, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ اور کتنے یار ہم تعلیم سے تو حاصل سوال آپ ہے. تب کریں کہ ہم کوئی آپ لوگ ہمیں عالم مانتے ہوں, ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہمیں تو آتی جاتی کچھ نہیں نا. دین تو سارا یا تو قادیان کی اکیڈمی کے اندر ہے یا جہلم کی سر اکیڈمی جی کے اندر ہے. آپ دین ہے وہاں عالم پہ, لوگ ہیں اس سوال میں تو کرنے ہم آپ نے سہمت وہاں ہیں. پہ, یہ دو جگہ کے اوپر سوال کرنے ہیں. ہم سے تو سوال نہ اب کریں, ہم لوگ تو, ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, ہم تو جاہل لوگ ہیں. اب یہی ہاں سوال اس کو بھی بتائے جاتے ہیں, مرزا محمد علی کو ہاں, یہی سوال اس کے اوپر بھی نماز کیا کا ہے, کوئی وہ سوال بھی کبھی یاد ہے. کیا آپ لوگوں نے کہ یار نماز کا مفتی کیا صاحب وہ طریقہ ہے؟ تو نا علمی جواب دیتا ہے, وہ وہی نا, کبھی فلسفی نماز جواب کا سوال کیا آپ لوگوں نے اس سے؟ نہیں, وہ تو سارے سمپل جواب دیتا ہے, جو نماز کا کہتے ہیں کبھی آپ کہ لوگوں نے سوال کیا اس سے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نہیں, ہم نے تو نہیں کیا سوال اس سے کبھی. دیکھ ہاں لے وہ آپ ویسے لوگ پھر بتا دیتا ہے, مرزیو, نہیں وہ بتاتا اوے رہتا ہے کہ مرزیو وہ دیکھ لو, علمی پھر بتاتا ہے. دیکھ لو مرزیو. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس رکھی ہوئی ہے, میں ایک چیز نکال لوں. یہ قادیانیوں نے جو اپنا دین بنایا ہے الگ سے, تو انہوں نے پھر فقہ بھی اپنی الگ سے بنائی, اس کا نام رکھا ہے فقہ احمدیہ. یہ ہے قادیانیوں کا پورا دین سمٹ کے اس ایک کتاب کے اندر آ گیا. یہ ہے قادیانیوں کا. میں بات کر رہا ہوں, ذرا بیچ میں بول پڑے, کمال ہو. نماز کا طریقہ, مکمل نماز کا طریقہ اس میں بھی نہیں ہے. بس 2-4 چیزیں لکھی ہیں, اس کے علاوہ مکمل نماز کا طریقہ اس کے اندر بھی نہیں. یہی کام مرزیوں کا بھی ہے. میں یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کتاب اٹھا کے لایا ہوں, یہ دیکھ لیں. پوری زندگی یہ ہو گئی ہے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر قادیانیوں کی اور مرزیوں کی شپڑیاں مارتے, پال ٹاک کے اوپر, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, اور آج کل ٹک ٹاک کے اوپر 24 گھنٹے قادیانی بیٹھتے ہیں. نماز یہ تک اس کے میں اوپر ان کو سر پتہ ہی نہیں. ان سے سوال کر کے دیکھ لیں قادیانیوں سے, یہ جو جواد علی جواب دے رہا ہے سیم یہی جواب ہوتا ہے, سیم یہی جواب ہوتا ہے. نہیں اس کا یقین تو کوئی اب اگر قادیانی ابھی آ جائے تو ابھی گفتگو کرتے ہیں, تو ابھی آپ کو پتا چل جائے گا. یہ گور یہ میدان ابھی پتا چل جانا. سن لے, ان سے پوچھ لے. یہ میرا چیلنج ہے, میں آن لائن چیلنج کر رہا ہوں. دنیا کے کسی قادیانی یا مرزئی اگر آپ کو نماز سنا جائے اور اس کو پھر ثابت بھی کرنا ہے قرآن
होती हैं, तहारत है, सितरे औरत है, इस्तिकबाल किबला है, वक्त है, नियत है, तकबीर तहरीमा है, इनको शरायत सिता कहते हैं, ये नमाज की शराय, ये हमारे मुसलमानों की बातें हैं। तुम लोगों का मैं नहीं पता कि तुम लोगों के अंदर ये चीजें होती भी हैं कि नहीं। सर एक मेरा सवाल है कि ये जो शरायत आपने बताई है, अगर किसी के ज़हन में ये निकल जाए कि शरायत हाँ हाँ भाई, ये उस दीन की मैंने शरायत बताई है नमाज की, जिसकी दुकानें तुम लोगों ने बंद कर दी हुई हैं। हमारी तो दुकानें हो गई है बंद, हमारी शरायत को छोड़ दो, हमारे दीन को, हमारे मजहब को, हमारी किताबों को, ये दुकानें बंद हो गई हैं। द डैमेज हैज बीन डन हो चुका है, छोड़ दो। अब तो हमने तुम लोगों का दीन तुम लोगों से सीखना है कि अपना दीन हमें सिखाओ, हमारी तो बात ही ना करो, हम तो किसी गिनती शुमार में नहीं है। और वो गुलाम अहमद कादियानी तो मिर्जा मोहम्मद अली की नमाज में फर्क क्या है? नहीं फर्क नहीं, दोवां दी नमाज इक्को जही है, मिर्जे कादियानी दी और मिर्जा जूनियर जेलमी दी नमाज इक्को जही। अब हमारी नमाज तो वो है जो गौस पाक ने पढ़ी थी। हाँ कैसे? वो है कैसे? वो रफ़ाई दैन के साथ पढ़े थे, हम भी साथ पढ़ते हैं। रफ़ाई दैन के साथ नमाज पढ़ते थे। नमाज जब हाथ बांधा जाता है तो कहाँ पे बांधते हैं? हाँ जी, नमाज में जो हाथ बांधे जाते हैं कहाँ पे बांधने हैं? अब इधर हमारे यहाँ तो सीने में बांधते हैं, लेकिन सीने पे। वो भी ये सीने में देखिए, ये बांधते मैं हैं। बांधने लगा हूँ, क्या ये मैं सही बांधते हैं कि गलत बांधे हैं? सही बांधते हैं आप? सही बांधे हैं। इसमें गोश्त पाक ऐसे नहीं बांधते थे, बताएं। तो जो आपने उनकी तरफ मनसूख कर नहीं, दिया आप कि कह रहे हैं ना वो गोश्त पाक वाली नमाज हम पढ़ती हैं, गोश्त पाक तो ऐसे बांधते थे हाथ। करें बात। सर ये तो मैंने नहीं सुना बात। तो वही ना, आप ये कहेंगे मतलब कि की वो मतलब हमकी की नहीं होया तो रफ़ाई कि दैन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦੇ ਚਲਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, पता कख भी नहीं है। हेलो, दुआ दो सजदों के दरमियान दुआ पढ़ते हो कि नहीं तुम? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ता। अल्लाह नहीं पढ़ते? तुम तो कह रहे थे मैं गोश्त पाक की नमाज अदा करता हूँ। नहीं, हम तो सिंपल है ना, अल्लाह अकबर जाके तो उसकी जो होती है सुभान अल्लाह। तो मिर्जा जूनियर जेल में दो सजदों के दरमियान दुआ पढ़ता है कि नहीं? अब मुझे उसका नहीं पता वो पढ़ता है कि नहीं। वो तो पढ़ता है, तो अब आप ये कहेंगे कि आप वो पढ़ता है, वो तो पढ़ता है। उसने तो जो नमाज की वीडियो जारी की है उसके अंदर तो है, वो तो पढ़ता है। नहीं, मैंने नहीं देखा सर। क्या नहीं देखा? अब मैं नमाज पढ़ता हूँ इधर हमारे यहाँ बरेलवी, तो बात कहीं की कहीं निकल गई। मैं नमाज की अभी शराइत से बात करना चाह रहा हूँ, अभी तो नमाज शुरू भी नहीं हुई, तो ये तो नमाज के दरमियान की बातें हैं, शुरू से शुरू करते हैं ना नमाज। नहीं, जो आपने शराइत बता दी है ना, तो आप लोगों की नमाज की कोई शराइत है कि नहीं? तो वो तो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। कौन सी ये शराइत है आपके लोगों की? कौन सी शराइत है आप लोगों की नमाज? नहीं, शराइत जो भी है, जब आप नियत करके पढ़ते हैं तो सारी शराइत नियत, चलो नियत एक ही शर्त है आप लोगों की, बस नियत। नहीं, इसका नहीं मुझे पता, ये था। अच्छा, आपको पता ही नहीं है। चलो नियत पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी कुरान की आयत या हदीस में लिखा हुआ है कि नियत करके नमाज अदा करनी? अरे अब नियत कहते हैं कि दिल के इरादे का नाम है। बिल्कुल ठीक हो गया। कुरान की आयत और हदीस भी कोई है कि नहीं कि ये कोई ये भी मिर्जा जूनियर जेल में ने छोड़ो लो मारी है? अच्छा, इसका इलम नहीं है आपको? अच्छा, इसका इलम नहीं है, नियत का आपको इलम नहीं है। नमाज से पहले तहारत होती है, बदन का, कपड़ों का, जगह का पाक होना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह होता है। कोई कुरान की आयत या हदीस? नहीं, मेरे इल्म में नहीं, पता नहीं है, इलम नहीं है। दो चीजें इलम में नहीं है। सितरे औरत होता है कि बदन को के जो छुपाना फर्ज है उसका छुपा हुआ होना, ये भी आप लोगों में होता है कि नहीं? ये हम तो सिंपल नमाज पढ़ते हैं जिस तरह। अच्छा, सिंपल यानी नंगे होकर भी पढ़ लेते हैं सिंपल? नहीं, सिंपल मैं जाता हूँ बरेलवियों के मस्जिद में जिस तरह। वो यार बताओ तो सही, सितरे औरत भी आप लोगों कायल हो कि नहीं? आप लोगों के दीन मजहब के अंदर सितरे औरत की भी कोई अहमियत है कि नहीं? हमारे मुसलमानों में तो है।
नहीं, अब मुझे एक बात थोड़ी समझा दें, वो तो जो आपने शर्तें बताई हैं ना, वो तो सभी के अंदर है, लेकिन नहीं नहीं आपने नहीं, शर्तों सितरे में जो औरत का पहले रखी है बताएं। पाक हो, सितरे औरत जो को आप पाक लोग हो मानते हैं पाक कि नहीं मानते? सितरे औरत, नहीं, इसका मतलब क्या, मुझे ये समझा दे, सितरे औरत चलो कहते पता ही किसको को हैं? नहीं है। औरत कहते हैं छुपाने की चीज, औरत का लुगवी तर्जुमा ये है छुपाने की चीज। तो यानी जो बदन का एक हिस्सा होता है, मर्द का अलग है, औरत का अलग है। मर्द का जो है वो है नाभ से लेकर के घुटनों के नीचे तक, इसका छुपाना फर्ज है। फिर इसका एक हिस्सा है जिसका छुपाना वाजिब है, वो ये आधी कलाई, ये जो हड्डी है यहां तक, और नीचे गिट्टों के ऊपर तक, यानी घुटनों, ये जो गोडा, गोडे को क्या कहते हैं, घुटना, घुटने से नीचे तक का जो है ना, ये है वाजिब के अंदर आता है। समझ आई कि नहीं? अच्छा, तो ये तो मुसलमानों की बातें हैं। आप लोगों का दीन मजहब क्या कहता है? नहीं, दीन जहलमियत मैं भी इसी तरह पढ़ता हूँ ना नमाज, मैं भी इस तरह पढ़ता हूँ इसी तरह नमाज, पढ़ते, कोई तरह कह कुरान रहे की ना आयत कि या हदीस इसके ऊपर? आप जिस तरह बाकी पढ़ते हैं ना, तो बरेलवी तो मैं उनको देख वो के तो पढ़ता हूँ, ठीक है, कोई ताकि वो कुरान ये हदीस ना भी है कहें कि नहीं कि इसके ऊपर, सितरे औरत के वो, ऊपर? नहीं, मेरे होगी, मुझे नहीं नहीं पता, पता। मेरे इल्म में लो नहीं जी, है। ये तीन चीजें इसको बंदे को कुछ नहीं पता। आगे आ जाते इस्तिकबाले किबला, किबले की तरफ मुंह करना है। तो वो ये हमारे अंदर तो बता ये होता है दिया कुछ, मुसलमानों में, आप लोगों में भी ऐसा होता है कि नहीं? होता है, क्यों नहीं होता, होता है। ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मेरी की आयत होती या है कोई वो। हदीस? सर ये हदीस तो है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं ये है, इल्म में नहीं अगर है। मैं लो आपको जी, चार बता चीजें बंदे दूंगा को इल्म तो ही नहीं है। अच्छा जी, मैं कल आपको सारी बता दूंगा सर्च पांचवी चीज की करके, तरफ भी आ, कल कल बताएंगे आप? मैं सर्च करके आपको बता दूंगा कि कब किस तक, हदीस कब में है तक? कि नहीं, कल बता दूंगा मैं, हाँ, तो आपको हुन सर्च बड़े वे करके लेना कोई सो, नहीं। जे तुहानू पता ही कख नहीं सी है। नहीं, अब मैं तो ये अपने सवाल लेके आया हूं नहीं, ना, आप सवाल उसका ते ओदे नाल करो जेड़ा आलिम होए, तुसीं सानू ते कोई समझदे को नहीं। सवाल साडे कोल कादा? सारा ओ आप भाई, सवाल तो उसको करे मैं कि तो जिसको आप लोग कुछ सवाल लेके समझते हो। आया हूं हमारे बाबों की तो ना, दुकानें बंद कर रखी, हम लोग बाबे हैं। बाबों की तो दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन हो चुका है। हमसे तो सवाल करने की आप अहलियत ही नहीं रखते। किस मुंह से आप लोग हम से सवाल करेंगे, बताए? नहीं सवाल कर रहे हैं, अभी जो हाँ, दिख रहा है आप इस तरह करते हैं, तो हम और सवाल करके नहीं, पूछेंगे कि ओ ये भाई, किस आप हदीस लोग में है दीन कि के नहीं। ठेकेदार तो आप लोग हैं ना। मिर्जा जूनियर जेलमी कहता अभी जो दीन है वो दीन जहलमियत चलेगा, नहीं तो लोग मुल्हिद हो जाएंगे या जिंदीक हो जाएंगे, काफर हो जाएंगे। नहीं, वो उसमें कहता है नहीं दीन चलेगा, कोई जहलमियत सा भी चलना है होगा बस। वो बुखार। वीडियो चलाओ भाई, किसी के पास है तो, दीन जहलमियत वाली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। उस्मान भैया मौजूद हैं? एक ग्रुप मैं के अंदर मौजूद भेज दो, मैं हूँ। चला देना वहां, ग्रुप च भेज दियो, मैं चला देना। हाँ, ग्रुप में भेज दे। मैं एक और है मेरे पास, मैं वो चला देता हूँ। मैं वो दूसरी एक नहीं, और वो जो भेज। कहता है कि अब सेकुलर हो जाएंगे लोग और मुल्हिद हो जाएंगे अगर मुझे नहीं मानेंगे, तो मेरे ऊपर जी ईमान ना जी, लाया है। वो किसी भाई के पास है तो वो ग्रुप में शेयर कर दे, ऐसी चला देते हैं। ऐसा बंदा कहने वाला मेरे मैं नजदीक कर देता हूँ अभी नहीं, जो शेयर। इस तरह पहले वो कह रहा है वीडियो कि वीडियो नहीं, लगाए जरा। वो लिहाजा तो वो मुझे यार दोबारा एक मिनट जी, करवाना नहीं, चुप ग्रुप मरजाई चलाओ। साहब, एक मिनट जरा चुप करके सुने, सुनते भी होते हैं, खप नहीं डालते। ले आओ यार, वो वीडियो ले आओ यार। ਲੱਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ यार? मैं भी पता नहीं डाउनलोड तो शायद की थी सी। एक मिनट। हजूर कर दिए मैंने वो सेंड। अच्छा, मैंने आपको बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि अब यंग जनरेशन या तो इल्मी किताबी मुसलमान बनेगी या इल्मी किताबी से मुराद हाँ, छड़ा मुस्लिम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ले जी, एक मिनट, मैं मैंने आप यूट्यूब पर भी जरा ये दिखा दूं। यूट्यूब 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 सुने जरा जी। मैंने आपको बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि अब यंग जनरेशन या तो इल्मी किताबी मुसलमान बनेगी या इल्मी किताबी से मुराद छड़ा मुस्लिम, किताब सुन्नत के दलाइल मानने वाला, और या हाँ, छड़े मुस्लिम, कुरान और सुन्नत के दलाइल मानने वाला। अभी तो मैं ये सवाल करता, जवाब ध्यान ना सुनी, जरा नेड़े हो जा, हूं नेड़े हो जा।
नेड़े होंदा वक्त आ गया ऐ मैं बाद च तेरे को सवाल करना वा फिर वो इस मजहब से ही बरगश्ता हो जाएगी, सेकुलर या एथियस्ट हो जाएगी। बाकी फिरके फुरके तो हम नजर नहीं आने इंशाल्लाह। मैंने आपको बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि अब यंग जनरेशन या तो इल्मी किताबी मुसलमान बनेगी, यानी इल्मी किताबी से मुराद छड़ा मुस्लिम, किताब और सुन्नत के दलाइल मानने वाला, और या फिर वो इस मजहब से ही बरगश्ता हो जाएगी, सेकुलर या एथियस्ट हो जाएगी। बाकी फिरके फुरके तो हम नजर नहीं आने। और फिरके फुरके ते कोई नजर नहीं आने ते ए बरगुश्ता हो जाना है। सब ने दीन जहलमियत कबूल कर लेनी और जनाब या एथियस्ट बन जाएंगे, धैर्य बन जाएंगे ते या छड़े मुस्लिम बननगे, यानी कुरान सुन्नत नूं मनन वाले। की जी जवाब साहब? हाँ जी, आप अब बताएं, आप अपनी चॉइस बताएं कि आप सुने तो सही ना। सवाल सुना नहीं मेरा, सवाल अभी हुआ ही नहीं, सवाल तो अभी हुआ ही नहीं, सवाल तो अभी मैंने किए ही नहीं। सुन तो ले, सवाल तो मैंने किए ही नहीं, कप पानी शुरू कर छड़ी तुम। सवाल ये है कि अब आप छड़े मुस्लिम हैं, यानी मुस्लिम इल्मी किताबी हैं या मुलहिद हैं? इन दो में से एक बताना है आपने। जी क्या है आप? सर आप पहले मुझे बता दें कि इन दोनों को आप इल्मी किताबी और दूसरा आप किस तरह मान रहे हैं, मतलब आपके नजदीक इल्मी किताबी क्या है, दूसरा मुझे नहीं क्या है? पता, मुझे पता ही नहीं, तुसां दसना है। अज सवाल तुहाडे कोलों ਅਸੀਂ करने ने, सानू नहीं पता की है, सानू तो दीन हुंदा ही कोई नहीं, नहीं सानू तो कित्थे हुंदा दीन, सानू तो पता ही कोई नहीं। ਇਹ ਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। नहीं है तो फिर ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ तो ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ वो ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ कुरान ਸਿੱਖਣਾ और ਹੈ? सुन्नत के मुताबिक ਤੁਸੀਂ ਦੱਸोगे ਸਾਨੂੰ। तो वो जो हम्म। कुरान और सुन्नत के मुताबिक है ना असल दीन, तो वही है। अच्छा ये आप मुझे ये बता दें, आप छड़े मुस्लिम हैं, मुस्लिम इल्मी किताबी हैं या मुलहिद है, सेकुलर है? सर मुझे इनके मतलब समझा दें सर, मुझे ओ यार मुझे क्या पता, तेरा बाबा कहता ही पिया यार, तू पहुंचो के मेरे को सवाल करी जा, कमाल हो गई है। अरे अब वो नहीं, अब वो कह रहा है ना कि मुस्लिम इल्मी किताबी है। अबे तू मेरे मुझ से सवाल बार बार किए जा रहा, मैं कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता, मैं कह भी रहा हूं मुझे नहीं पता। पहुंचोगे मेरे को सवाल, तू दस। मैं यार कादियानी भी यही ड्रामे करते हैं, वो कहते हैं देखो जी दावा हमने कर दिया, दलील तुमने देनी है। अच्छा चुप कर जा भैया, माइक म्यूट कर दे। आप एक गिट्टे गोडों में पानी नहीं है तो जा जाके कोई ना ओरल सैक्स कोई 2-4 वारी कराओ, थोड़ी अकल ठिकाने है। हजे तुसी कामिल तौर ते पक्के सच्चे मुस्लिम इल्मी किताबी नहीं बने, ओदे वास्ते उस ना पक्का मुस्लिम इल्मी किताबी बनने के लिए कोई 2-4 बारी कम से कम ओरल सेक्स करवाना जरूरी है। तुहानू पता है कि नहीं पता? फ्लेवर अलग अलग होने चाहिए ने, फ्लेवर बदल बदल के। हाँ एक फ्लेवर रखोगे तो पक्के सच्चे नहीं तुसा बनना। हाँ काशी बात करो भाई। जी उस्ताद मोहतरम एक वीडियो चला रही है, इनको चेंज करके देने। मैंगो फ्लेवर इनका फेवरेट है। मैंगो फ्लेवर जेलम से खत्म हो चुका है उस्ताद जी, अच्छा जेलम से खत्म हो चुका है। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए कराची राब्ता किया गया है, उन्होंने कहा मैंगो फ्लेवर। हाँ, नहीं तेरे कादियान च राब्ता कर लेना, उत्थे बड़े बड़े फ्लेवर ने रबुए। असल जी कादियान वाले आप नहीं रहे ना, मैंने तो सवाल नहीं किया, आप मुझे बात में यार चुप कर जा, जवाब गल करन दे सुक्का शब्द। यार तो तेनू अपनी लंबी लंबी छोड़नी और क्या, शेर की बातें पहले सुनता रहता हूँ मैं। अच्छा ओए ये रिश्ता तू भेजिया सी मैनू, ऐसी उस्ताद जी मैं तुम दस रहा था ना, रिश्ता भेज रहे हैं ऐसी हो, ये इल्मी बातें होती हैं। ऐसी हो बंदा जरा मैनू रिश्ता भेज रहा सी, हुण मैनू पता लग गया भैया। काशिफ भाई इधर बात करिए, मेरा सवाल है, आप मुझे रिश्ते की बात सुना रहे हैं भाई, ये किधर का असूल है? तो जा यार जा, दिमाग में खा जा, दिमाग में खा। भाई आपकी वीडियो ऐसी है कि अगर कोई घर वालों के सामने दिखाते हो तो यकीनन उसकी बेइज्जती होके रहेगी। आपकी वीडियो ऐसी है, ऐसा क्यों है भाई? इल्म से बात करें यार, ये क्या आपने ये रिश्ते लगा रखे हैं बीच में? अच्छा साहब यार जवाब एक मिनट रुको, यहाँ टिकटॉक पर भी कुछ कलर आए हैं तो तुम्हें नहीं लेके हमने बैठे रहना। उस्मान टिकटॉक पे बात करें। जी उस्ताद मोहतरम जब आप गए थे मिर्जा इंजीनियर के पास तो मुझे बताएं कि आपने काम डाला था उसको, वो किथे उन्हें वक्त ही नहीं देता यार। ते ए मिर्जा इंजीनियर ते कहंदा है कि वो आंदे ने मैनू काम पाउण, ए सुनो जरा।
ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कहती है मुफ्ती साहब पे मुझे तरस आ बल्कि मेरी बीवी भी मुझे उस कहती है मुफ्ती साहब पे मुझे तरस आ रहा है यार मिल लो। मैंने कहा ना इस तरीके से नहीं, वो तो काम डालने आया है। जी ਉਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸਲੋ ਯਾਰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ मैं फिर सुनाना। बल्कि मेरी बीवी भी मुझे उस कहती है मुफ्ती साहब पे मुझे तरस आ रहा है यार मिल लो। मैंने कहा ना इस तरीके से नहीं, वो तो काम डालने आया है। वो कहता है कि मेरी तो बीवी भी मुझे कहती है कि मुफ्ती साहब से मिल लो, बड़ा तरस आ रहा है। तो कहता नहीं ऐसे नहीं, आगे वो हंसते हैं तो वो कहता है मिर्जा इंजीनियर कि ये तो मुझे काम डालने आया। हाँ अच्छा इस्लामुल्लाह भाई बैठे हैं YouTube पर। इस्लामुल्लाह भाई बात कर लें फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी। अच्छा हजूर, ये काशिफ दूसरी पार्टी का भी हो एक मिनट जी इस्लामुल्लाह भाई पूछ लेता है। ਕਾਸ਼ਫ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ TikTok ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ जी ठीक हो गया उस्ताद मुस्तफा। सलामुल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा ये जो अभी आया था ये दूसरी पार्टी का भी हो सकता था, ये पूछ लेते कि उठो सूरह नमाज पढ़, ये उस पार्टी का भी हो सकता था। अरे उसके ये ऊपर भी छींटे पड़े होंगे ना। नहीं इस्लामुल्लाह भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पार्टी का था, पार्टी का नहीं था, ये पार्टी वाला था। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो पार्टी वाला नहीं था। ये वो जो है ना पड़ी पुड़ी गई वाला ना, पड़ी पुड़ी गई। मैं जा हाँ अच्छा खा लेगा। इसको पता होता है कि मौलवियां सुतल ला दे रही है, पता इन्होंने है वे। सलामुल्लाह पढ़ने जी हुजूर, मुझे तो ये लग रहा था वो दूसरी पार्टी का, जो वही नहीं नाजिल हुई थी लिक्विड, वही जो छींटे साथ पड़े मुलाजिम के ऊपर भी पड़े थे, उठे सूरह नमाज पढ़, ये उस तरीके से नमाज पढ़ने वाला होगा। उठो सूरा नमाज पढ़, ये वो वाला कह रहे हैं ना आप? हाँ जी वही कह रहा हूँ, जो वही नाजिल हुई थी गिरजे पे, ये उसी की बात हो रही है। जो उठो ओके सूरह उस्मान नमाज भाई आप कॉलर ले लें वहां पे। जी ठीक है, मैं इधर से देख रहा हूँ अगर कोई कॉलर आता है। अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है कि आज कोई सवाल ही कर ले आके। और लेकिन फिरकों की दुकानें जनाब इन्होंने बंद कर दी हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आज सवाल कर लो, कोई बात कर लो, खुले हैं जनाब। हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं, वो कोई खुद में बढ़ के नहीं बैठे मर्ज़ियों। कादियानियों निकलो बाहर, आओ बात करो। आपकी तरफ कोई है कॉलर तो ले लें फिलहाल। नहीं हमारी तरफ कोई नहीं है, आप उधर ही आपस में बात करें, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ। जी ठीक हो गया जी। जी अमर भाई ये आप मिर्जे की तरह ना मोहम्मद निकले, जैसे मिर्जा निकला था ना, 10 साल लगा दिए थे निकलते निकलते, अब ऐसे ना निकले। ये भी मतलब सवाल कर दे, ऐलान कर दे कि मिर्जे की तरह ना निकलना, जैसे उसने 10 साल लगा दिए थे निकलते निकलते ही। जी जी भाई आपकी कोई आवाज बात नहीं करना पहुंच रही। नहीं, वो कॉल आ गई थी मुझे। सलामुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कॉल आ गई थी एक, तो अच्छा मोहम्मद अहमद भाई हैं हमारे साथ। जी मोहम्मद अहमद भाई, आप कोई बात करना चाहते हैं? अस्सलाम
सुन रहा हूँ मैं आप लोगों को, काफ़ी देर से सुन रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जी ठीक हो गया मोहम्मद अहमद भाई। कादियानी जो हैं या मरज़ई वो तो जनाब आ ही नहीं रहे अब। इनकी जो है वो दुकानें बंद हो गई हैं। जेल में फ़िरका और जनाब जो कादियानी जो दारे इस्लाम से। अच्छा उस्मान, ये जवाद साहब मौजूद हैं दोबारा। जवाद साहब माइक ओपन करें और टिक टाक के ऊपर उस्मान भाई हैं, वो आपसे बात करते हैं। सर जी आप जा रहे हैं किधर? जी जी, ये उस्मान भाई हैं, ये बात करते हैं। जी जवाद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। जी करें बात, क्या कह रहे थे आप? मैं कोई सवाल करना चाह रहा था लेकिन सर जी ने मेरे सवाल करने से पहले ही फंसा दिया। तो वो जो फिरकों की दुकानें बंद, उसने जो नारा लगाया है, ये तो वो जो मौलवी बड़े बताया भी शरारती उसने। हैं, ये पहले ही फंसा लेते हैं। मोहम्मद अहमद अपना क्या नाम है तुम्हारा, जवाद, ये मौलवी बड़े शरारती हैं, ये पहले ही फंसा लेते हैं। अच्छा हाँ बात आपकी ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं सुन बरेलवी हूँ तो फिर सर ने कोई सवाल नहीं पूछना था कि आपने नमाज किससे सीखी, किस तरह, फिर तो इन्हें नहीं तू ऐ गल छड़ दे, तेरी उदों भी बिस्ती होनी सी, छड़ दे तेरी, नहीं होनी थी भाई। तेरी अकल ये से मैं तेरी लिख शक्ल के तो पता लग रहा है। ये मैं लिख के दे रहा था, ये शक्ल बहुत पुरानी है ये। चल लिख के दे, चल लिख के दे, लिख के दे, चल लिख के दे जल्दी कर। नहीं अगर मैं कहता ना कि आप सही हैं कि मैं सुन्नी हूँ, उस्मान भाई चले बाबू। नहीं फिर आप कोई आपने बात जी, नहीं करनी। अच्छा ठीक है। वो जवाद साहब आप तो कह रहे हैं ना कि अगर मैं कहता है, तो वो अभी वो काशिफ भाई भी बता रहे थे कि आप ये आवाज ही मनहूस है, पता चल जाना था, आवाज से पता चल जाना था, मनहूस आवाज से ही, कि आप मरज़ई हैं, मिर्जा इंजीनियर के मानने वाले हैं, उसके मजहब पे पैरोकार हैं आप। तो फिर आपने बताया नहीं मुफ्ती साहब को कि जनाब वो जो आपकी औरतों के बारे में उसने फतवा दिया है, तो क्या उसका आपने क्या बताया? तो मैंने कह दिया था ना कि मैं इस चीज को नहीं मानता। अच्छा, तो यानी कि आप उसकी ये गंदी गंदी कुफरिया बातें छोड़ देते हैं, अच्छी अच्छी ले लेते हैं। अच्छी से मसलन ये है कि वो कहता है कब्रों के ऊपर इमारतें ना बनाओ, आप बनाती हो। वो कहता है कब्रों को ना पूजो, आप फिर भी जाते हो। अच्छा ये उसकी अच्छी बातें, इनकी तरफ कोई आता ही नहीं है यार। अच्छा 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 ठीक है। ये भी, ये कहानी भी पुरानी हो गई है उसकी। वो खुद तो खुद में बढ़ गया है, भाई और इनकी आपकी तरफ औरतों को भी आओ जनाब ना। दे गया अब चार चार करनी जोर। को आए तो मैं भी अब मेरी बातें बात तो सुनूंगा सुन आपके लो बारे में। मुझे इतनी जवाद बातें मालूम मरज़ई, है कि मैं कर दूंगा तो फिर जवाद आप मरज़ई ये बात सुन लो जरा, बात तो सुन लो मेरी। अब वो कहता है कि जनाब जिसके साथ ये जो इस हवाले से जो तुमने बात की है, इससे तो उसका पूरा खानदान मुशरिक हो गया। वो कहता है मेरा खानदान पूरा यही काम तो करता था। फिर वो जिसने उसका निकाह पढ़ाया वो भी मुशरिक, तो उससे उसने निकाह पढ़ाया, तो अब इसका निकाह जो है इसने क्या दोबारा से वो तजदीद निकाह किया है या दोबारा किसी और से पढ़ाया, क्या किया है कि वो जिना करता जा रहा नहीं है? मैं कह रहा जब एक हूँ मुशरिक से उसने अगर आपने इस और तरह जब की एक बातें मुशरिक से उठानी उसने है निकाह ना, पढ़ाया इस है। तरह की बातें उठानी है तो ये मेरे पास भी बहुत हैं। ये बातें नहीं मेरे नहीं, पास भी जो बहुत हकायक है मैं तो वो बताऊंगा ना जवाद मरज़ई जी, मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी बात करनी है। अच्छा नहीं अच्छा, सर इस बात समझने इसके की ऊपर तो कोशिश करें ना। लानत अब डाल दी। इसके 4 ऐप है ना, तो अगर इसके 4 मैंने ऐप है कहा तो 4 ऐप आपने आपके हैं, ब्रदर बरेलवी के भी हैं। आपने तो ओरल मैं उसके ओ आपको भाई, ऐप बता देता हूँ तो फिर आपने कहना नहीं। अच्छा ये जो उसने औरतें बांटी हैं आपकी, उसके ऊपर लानत भी डाली है कि यार ये इसने क्या बकवास की है कि बस यार ऐਵੇਂ मैं छोड़ लानत दी है डालता बात? हूँ इस चीज के ऊपर है, चाहे दुनिया में हो अच्छा चाहे जन्नत में हो, इसके ऊपर लानत है मेरी। इस सिर्फ इसके ऊपर है। लानत का मतलब है कि मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं चलो नहीं एक मिर्जा और जी, बात बहस तुम्हें की बताते हद हैं, की बात तो है। इस बात को बारे में बताना कि वो भी मानते हो कि नहीं मानते, ये सुनना जरा। हाँ आप बताओ। मैं इसलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम। हाँ, तौहीद के बाद सेक्स डिसिप्लिन पसंद है कि नहीं तुम्हें? और ये किधर से है? इसका मतलब है कि इस्लाम में ना इसका अच्छा है वो जो है ना, बाकी मज़हब के मुकाबले में हाँ, ना मानते हो कि नहीं, छोड़ो थोड़ी यार, वो अच्छा है। जीराबाद में करते हैं, मानते हो कि नहीं तौहीद के बाद सेक्स को? नहीं मैं नहीं मानता तो ईद के चलो, बाद।
पहली चीज भी मैं नहीं मानता, ये दूसरी भी उसकी, मानते कौन सी हो मिर्जे जूनियर की। अरे मैंने तो ये चलो कहा अगली कि सुन लो, उसकी अगली सुन लो आप है। बात। अब इसका भी इनकार कर देना। नाम का सबसे वो कहता है 10 साल की जब मरजैन हो जाए ना लड़की ते ओ बाजियां नु सेक्स सिखाओ खोरी। ऐ सुनिया जी। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके, मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके उज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि यही मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस उस्मान कर सूंगा लिया। हाँ जी जी जवाद मर्ज़ई जी, अब आप रज्जो को अरे अपनी रज्जो को उसने अपनी एजुकेट ये तो करने अपनी का रज्जो को टाइम था, तालीम उसने दे ये रहा कहा है। कि आपने बताना है, उसने ये कहा कि आपने बताना है, ये ना हो कि जब वक्त आए तो उनको कुछ पता ही ना हो। इसका ये यही वो कह रहा है ना। तो वही तो हम बता रहे हैं कि अब आप अपनी रज्जो की तालीम और तो तरबियत अब आप ये उससे मेरे मानने करेंगे। में सही है, वो बता रहे हैं ना कि ये तालीम आपको देनी ठीक हो चाहिए, गया, पहले देनी मैंने चाहिए, कहा ताकि ठीक। बाद में अगर उनको पता। उसने 10 साल की उम्र ली, हालांकि 14 साल की बच्ची की शादी हो जाती है। शादी से उसने 4 साल पहले ये कहा है कि बता दो आप, ताकि इसके आप बीच में अब अगर मसला हो तो ना ठीक हो गया तो जी, खुद मैं ही क्या जवाब मर्ज़ई जी, अब आप इस पे एग्री हैं, ये बात ठीक है उसकी। अब आप 10 साल अपनी जो बच्ची है रज्जो की, अब आप करेंगे तरबियत। नहीं, मैं उसकी बात को मुवफ़्फ़िक़ ज़रूर हूँ, लेकिन इस तरह होता नहीं है। मतलब उनको देनी तो है, मैं तो मुत्तफिक नहीं भी है कहूँगा वो अल्लाह भाई, की ये मैं क्या मैं तो तुम्हारी नहीं मत तो कहूँगा। नहीं बच गई? मुत्तफिक भी हो कहते ऐसा होता नहीं है जैसा वो कह रहा है। यार अब मैं मैं कह रहा हूँ मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी करना है यार, ये काम मेरी बीवी का वो है, तो वो कह रहा करेगा, है तो जनाब, मैंने उसने थोड़ी जनाब बताना है। पूरी, तो वो वो बता कह रहा है देगी ना, तालीम और मैं अपनी तरबियत बीवी को करनी है बता आपने। दूँगा कि इस तरह बताना है। वो कह रहा है मैं वीडियो भी बनाऊंगा और आपने वो वीडियो जनाब अपने बच्चों को दिखानी है। तो वो वीडियो भी कह रहा है मैं पूरी एजुकेशन सेक्स एजुकेशन पे बनाऊंगा, तो फिर आप अपनी रज्जो को दिखाएंगे। ये बात नहीं तो वो बड़ी वीडियो वाली अजीब है। ये आगे है, वो आगे सुने। केस के बाद तो देनी वीडियो है ना वाला आपने। लास्ट मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन आए। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख, ये वाली हाँ ये बात सर इसकी लानत के लायक है, लानत के लायक क्योंकि इसने ना एक इस्लाम को छोड़ के इसने एक सेक्स का मरकज कायम कर रखा है कि इस तरह सेक्स सिखा रहा है ये इसकी ये बात उसकी कहनी सही है कि आप बताएं। अब ये खुद बता रहा, तो ये खुद मरकज इसने शुरू किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो इसने अपनी लड़की रज्जो का अंडरवेयर का जिक्र किया, उसके बारे में कोई आपका कमेंट? नहीं, वो तो उसने ये थोड़ी कहा कि मैं खुद देता हूँ, उसकी मम्मा नहीं ने उसको नहीं, दिया है, उसकी मम्मा अच्छी ने बात नहीं, ही है। मम्मा ने नहीं, वो बाहर स्कूल के अंदर मैडमों ने उसको अंडरवेयर, क्योंकि रास्ते में वो जा रही थी तो वो पीछे से पता नहीं आगे से वो शलवार कह रहा है खूनो खून हो गई सी, फिर ना मैडमा ने क्या अंडरवेयर पा। ये नहीं शायद आपने सुना, ये सुने जरा। मतलब वो आके ऑलमोस्ट 12 साल तो परेशान नहीं होना। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके उज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं
कि ये मामलात हो गए। तो वो अच्छा, यहाँ पे एक मुझे चलते चलते एक बात याद आ गई है कि जो बात उसकी मम्मा अपने पप्पा से नहीं डिस्कस कर सकती, वो पप्पा बगैरत आजम, दुनिया का बगैरत आजम पप्पा, वो पप्पा सारे मजमे के सामने पूरी दुनिया के अंदर अपनी उस लड़की रजो का जिक्र कर रहा है, हत्ता कि अंडरवेयर तक का जिक्र कर रहा है कि वो बेशरम इंसान, वो बेशरम, वो तो तेरी ते कुड़ी सर वो चंगी है। बता रहा है ना सर, वो तो बता रहा है कि इस तरह सिखाएं लोगों को, मैं खुद करता हूँ तो आप भी सिखाएं। उसका ये नहीं, मतलब थोड़ी है मतलब कि उसने उसकी ये आप काम ये ठीक लाइफ किया, अपनी लड़की रज्जो के अंडरवेयर वो तक वो बता रहा है लोगों को, सही कर रहा है। नहीं, वो कह रहा है कि अंडरवेयर पहने ताकि बाद में जाके ठीक मसला ना है बने कि भाई, वो कल रिसाइज से आपकी बच रहा है बच्ची, ना। कल आपकी बेटी वो लीक हो जाती है स्कूल जाके, तो वो आके लोगों को आप बताएंगे, यहाँ पे हमारी ब्राड पे आएंगे, लोगों को बताएंगे आज हमारी मेरी बेटी लीक हो गई थी तो बाद में अंडरवेयर पुआया उसको। नहीं, मैं बताऊंगा क्यों सर, अब मेरा नहीं है थोड़ी कहा कि मैं यही तो बता बात दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि वो लोगों को बता रहा है, ये वो बातें तो बताने सर वाली लोगों हैं। की इस्लाह कर रहा है ना, वो इस्लाह कर रहा है तो लोगों आपने की। नहीं सलाह बहुत करनी, लोग होते हैं आपने ही सलाह करी, आप नहीं बता सकते अपनी बाजी या अपनी माँ के बारे में, नहीं इस्लाह ही सर, करनी है ना आप। वो हमारी इस्लाह कर रहे हैं ना, वो तो ये भाई थोड़ी कह रहे हैं ठीक कि है, आपकी वाली इस्लाह। उसने आपकी सलाह कर दी, आपने लोगों की करनी है, ऐसे ही है ना। मैंने लोगों की क्यों करनी है, लोग अपनी इसकी सुन उसकी करें, मैं लोगों नहीं, को जिस तरीके से करें आपका बाबा आप लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, तो आप लोगों ने आगे नहीं इस्लाह करनी की है। तो आगे करनी है, लेकिन इसकी वीडियो दिखा के करनी है ना। अच्छा, अब वीडियो, ये थोड़ी वीडियो मैं किसी दिखाए, को ये बताने वीडियो लग दिखा तो जाऊंगा रहा हूं मैं। मैं उसको, तो मैं भी उसको दिखा तो दूंगा। अभी अब तो ये आप थोड़ी कह रहे है थे कि कि मैं ये उसको वीडियो जो है ना, ये इसने आप बगैरती की है, तो अभी आप कह रहे हैं नहीं इसकी सेक्स वाली वीडियो दिखाएंगे हम। ये क्या माजरा है, क्या नहीं, मैं ये क्या कह रहा गेम हूँ कि कर रहे हैं आप। जो वो इस्लाह कर रहे हैं ना कि इस तरह आपने बताना है कि मैंने भी खुद किया। अब वो मरकज कायम कर रहा है, वो तो सिखा रहे हैं ना, वो तो अलग बात है। यार उस्मान ए अब बंदा खिजदा बरसई आ गया यार, उस बार गल कर तू इस यार। तरह का आ गया कि सांपा नहीं जाएगा। कमाल दा इल्मी बरसई है, किताबी है, इल्मी किताबी है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ इल्मी ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲੇ किताबी तो ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ और ਨੂੰ ਰੰਦਾ इल्मी की जो बात कर ही नहीं है ਰੰਦਾ शुरू से, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आप ਰੰਦਾ इल्मी की ਫਿਰਨ बात ਵਾਲਾ कर है ही नहीं रहे। रंदा भी आप फेर ते रंबा भी फेर। जी क्यों इल्मी सलाम वाली जवाद बात तो अलैकुम। आप भाई। कर ही नहीं रहे इधर। हालांकि मैं हाँ करनी वो वही है बात कि मुझे बता देंगे कि अच्छा किधर जवाब, एक लिखा मिनट है इस रुक तरह यार से। जरा, टिकटॉक ते एक और शायद तेरे भाई है ने या कोई और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब आलक? शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह उस्मान भाई, जी जी मतलब समझ नहीं आ रही। उस टाइम भी आया हूँ, आप इसके इसके खिलाफ नहीं बोल रहे थे और अब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये मुफ्ती साहब ये सीन क्या चल रहा है? कोई समझो बाहर जा काम हो गया है, कोई तो समझ आई है कोई। उस्मान भाई उस टाइम में आया, उस्मान भाई माशाल्लाह कहते ने कि मेरी इस्लाह करो, मेरे तो जेल में मतलब अगर ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ मेरी इस्लाह करो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ बैठ के कह रहे ने, समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं समझो ਮੈਨੂੰ बाहर ਵੀ हो ਸਮਝ गया ਨਹੀਂ काम, ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ समझ नहीं आ रही, सानू भी समझ किदों आ समझ रही आ है। रहा ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲਓ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ। ले यार, तो समझ नहीं आ रही, तू सानू समझा ना, तबलीग करना तू भी सानू हुन। मैं क्यों तबलीग करनी? उस टाइम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ मैं तबलीग नहीं करता, मैं खुद सीखना पिया। अच्छा नहीं, वो तू नहीं कह जो रहे हैं कुछ ना जो कि मैं सीखा जो वही सिखा दियो ना, जो कोई सीखा जो सिखा दियो। पहले उस्मान भैया मुझे ये बता दें, आप मिर्जा इंजीनियर के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? बात खत्म। और नहीं जी, ये साड़ियां दे दुकानां बंद कर छड़ियां ने उन्हें ले, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਾਦ ਬਿਨ ਡਨ ਕਰ ਛੜੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ में। अल्लाह अकबर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। जनाब मैं तो उस टाइम मैंने आके कह छड़े कि दो ही लानती ने। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ उस्मान ਵੀ भाई ਤੁਹਾਡਾ ने ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਮਕਰਮ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਾਦ ਬਿਨ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਡੈਮ ਜਾਇਜ਼ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਹੋ। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਮਾਨ ਜਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੀ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ रज्जो दी तलीम व तरबियत। नहीं, अभी आप कह रहे हो ना कि डैमेज एज पीरियड वो तो उसने कर ही दिया है, क्योंकि उसने जब हदीसे कौल के सामने रखी है हाँ जी, वो कर दिया है, वो बिल्कुल वो कर दिया है। तो अब आप जनाब फिर अब रज्जो की तलीम फिर दे के आप वीडियो कोई अपलोड कर रहे हो, या कोई उसकी वीडियो जो उसने कहा है कि मैं वीडियो को बनाऊंगा, तो वीडियो आपने रज्जो को दिखाई हो, या फिर नहीं। अब मैंने ये कब कहा है कि जो वो वीडियो बना रहा है, हालांकि वो मरकज एक कायम कर रहा है, उसका मैंने कब कहा है कि मैं उसके नहीं, वो साथ कह रहा है मैं वीडियो बात ये- बनाऊंगा जनाब 10 से 15 साल बच्चों के लिए, तो फिर आप अपनी रज्जो को वो नहीं, दिखाने वो हैं तो हो सकते है उस वक्त में वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, हो सकता है ना ये भी। तो देखे ना वो अब फिर कह ये रहा भी है कि अच्छी मैं बात है कि इसके आपके तो मैं जनाब वो खिलाफ हूँ, अब जो वो मरकज आपके एक कायम कल्ट कर में रहा वो है ना उसके मैं खिलाफ, आपके लेकिन कल्ट अब वो ये में कह रहा नहीं कि आपने तालीम देनी है, वो ये वो लोगों आपके गाइड कर कल्ट रहा है में कि जनाब आपने प्रैक्टिकल आप भी अपने करके बच्चों को नहीं दिखाए, तो देंगे ये फिर तो कौन देगा। फिर और अच्छा हो जाएगा। जैसे उसने अभी रुमाल दिए और आगे पता नहीं वो पीछे रुमाल दिए उसने, तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, फिर तो और अच्छा हो जाएगा। ਓਏ ਆਹੋ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਯਾਰ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਂਦਾ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਪੈਡ ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। नहीं, अब पैर रखने का मतलब ये है कि अगर उसके साथ हो जाए कुदरती तौर पे तो इसलिए है ना। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? अब ये नहीं, कुदरती तौर पे अब हो जाए तो ਕੀ ਹੋ होना है, ਜਾए? इसलिए वो कह रहा है समझ ना। नहीं आई कुदरती हो जाए। यार अब इसका ये तो नहीं कहना कि वो स्कूल में जाके अब करेगी, समझ लो आप, इसका ये तो नहीं ना नहीं मतलब। समझ नहीं आई कि स्कूल जाके करेगी, समझ लो आप, हो जाए कुदरती हो नहीं, जाए। पैड अब मैं तो नहीं ऐसा करूंगा, पैड नहीं रखूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अच्छा उसकी पैड ना नहीं, आप क्या सिर्फ रखेंगे? एक बात से आप मैं पैड सिर्फ एक बात से आप मुतफिक अपनी हूँ। सिस्टर या अपनी बेटी के बैग के अंदर क्या रखेंगे अगर पैड नहीं रखेंगे तो? सर मैं इसकी पैर रखने वाली बात से मुतफिक हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, बताना चाहिए मुत्तफिक था, है कि उसको मुत्तफिक पहले नहीं से है, बता दें। मुझे समझ नहीं आई। अब वो पैर रखने वाली बात तो उसकी एक अलहदा आ गई है ना। नहीं वो दो, एक पैड नहीं दो। अच्छा सर, अगर मैं कहूँ कि जो इसकी गलत बातें हैं मेरे नजदीक सारी ही वो गलत हैं, तो यार फिर आप मेरे सवाल मतलब का है जवाब कि दे गल देंगे। नहीं कोई समझ आंदी पई। एक असी गलत उतो मिर्जा जूनियर जेल में भी गलत, सही केड़ा बंदा है वो दसो यार। सारे सर गलत हो मैंने गए। आपको गलत कब कहा है सर हाँ। जी, मैंने आपको गलत कहा ही नहीं है। नहीं मैंने ये कहा है कि मैंने भाई मिर्जा जूनियर जेल में हम सबको कह रहा है गलत, हमारी तो द डैमेज हैज बीन डन। आप कह रहे हैं कि मिर्जा जूनियर जेल में भी वो तो इसलिए अभी कह रहा है आप कि इसमें घंटा डेढ़ से बैठ के हदीसें कौली मिर्जा शुरू की जूनियर हैं। जेल में का दिफा कर रहे थे, अभी एकदम आपने फतवा ये दे दिया नहीं ये वो भी गलत है। ये की मसला है, ये की नहीं, कहानी जिधर मुझे गलत लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ, मैं कोई हदीस इस तो नहीं पूरी खोल के वीडियो दे बैठा विच हुआ कि केड़ियां ओदियां गल्लां ठीक ने ते केड़ियां सही ने वो दसो। अब मैंने वीडियो देख लिया है, ये बात उसकी ठीक है कि गाइड करते हैं बस कि अगर हो जाए तो इस तरह हैंडल करना है, पैड देने जरूरी गाइड थोड़ी है, कर पैड दें। वो खुद ही ले जाएंगी अच्छा वीडियो ये को। बात ठीक है उसकी गाइड करने वाली, आप वीडियो दोबारा चलाए ना, मैं बता दोबारा देता हूँ कि सुने। इससे अच्छा मुतफिक। जहां पर गलत बात होगी तो आपने मुझे रोक के कहना कि ये गलत है, जहां पे सही होगी आपने कहना ये ओके सही है, ठीक है ना? क्योंकि इस एक वीडियो के ओके अंदर ओके। तकरीबन 50 के करीब उसने बातें की हैं, कितनी बातें की हैं उसने? तकरीबन 50 के करीब। तो 50 डिफरेंट है कि एक है? मुझे क्या पता, अब डिफरेंट है आपने ये कि सुनना, आप कह नहीं, रहे अब हैं। आप कह रहे हैं ना, हाँ, अब आप कह रहे हैं 50 बातें की है, ये ना हो कि मैं एक को गलत को दूसरी को सही को आपने कहा लोग हाँ मैंने नहीं पहली नहीं वो बात सही कह दी। आप फर्क डालते जाना कि ये गलत ये ठीक, ये गलत ये ठीक, ऐसे करते नहीं, जाना। अब आपने कहा है ना कि उसने एक से ज्यादा पर बात की, अब चलो आपने मैं 50 मैं बातें मैं की, वीडियो आपने की रोक होंगी। के आपसे पूछ लूंगा, चलो सुने। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी ये चीज गलत है सेक्स सर, डिसिप्लिन मुझे इस्लाम अच्छा ये ये गलत तो ठीक हो गया, ये गलत है। ये ठीक हो आगे। का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है।
दूसरी चीज सेक्स ये भी गलत डिसिप्लिन है। मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए अच्छा ये वाली चीज गलत है कि सही है कि जो मजहबी लोगों को बुरी लगे तो लेकिन इसने की है? वो लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं नहीं ना, नहीं कि अब वो भाई छोड़ दें, इसको आप ऐसे- जीरा ना करें। ये बात ठीक है कि गलत है? ये गलत है। अच्छा ये गलत है। इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। अच्छा ये वाली बात ठीक है कि गलत है कि जो लोग कहते हैं जी सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए? देखो जी इस्लाम में तो सेक्स एजुकेशन है। तो ये फिर कोई हदीस ला के दे ना, अगर है तो। अगर नहीं हदीस ला के वो दे छोड़ तो फिर दें, ये बात ठीक है कि गलत है? नहीं है, जबकि इसने कोई हदीस नहीं पेश की तो ये बात मेरे नजदीक गलत है। अच्छा ये भी अभी तक तो सारी गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन अच्छा ये बात कि मैं ये नहीं कहता कि 2-3 साल के कुड़ी मुंडे को आप सेक्स सिखाएं, बल्कि लड़की 10 साल की हो जाए तो फौरी सेक्स सिखाएं। ये बात ठीक है कि गलत है? अरे सिखाने से मतलब है उसको बताया, वो कोई किसको कोई चीज सिखा रहे हैं उसको भाई प्रैक्टिकल छोड़ दें यार, अभी जीरा नहीं मैं कर रहा। ये बात ठीक है कि गलत है? नहीं, वो बताने का कह रहा है ना कि आप बताएं, तो ये बात यार है जीरा कि ना अगर करें ठीक आप, है। सिर्फ इतना बता दें ये ठीक है गलत है कि सही है? नहीं किसी हद तक ठीक है, मतलब ज्यादातर ये बात ठीक है कि आप ये ना हो कि नहीं आप उसको किसी पहले हद तक practical ठीक करें। है, ये तो आपने बताना, सिर्फ बताना ठीक है, यानी पूरी पूरी ठीक नहीं है वो ये? भी पूरी ठीक नहीं है ये कह अच्छा रहा हूं पूरी मैं। ठीक नहीं है पूरी ये ठीक बात? का मतलब है कि लोग है ना 2-2 मतलब निकाले थे, कोई प्रैक्टिकल करना है बता यार रहा है, लिही कोई जाया जे ऐसा- भाई 1/2 हो गया जे 1/2 ठीक है ते 1/2 गलत होगी ना फिर? मैं ना सिर्फ इसकी इस बात से हूँ मतलब, बाकी इसकी कोई भी बात ओ है ना, यार मैं किसे इसकी पेंडे सारी दे इसकी पाओ है। ना यार, या गलत या सही या अद्धी पचद्दी ये की हुंदा है जी? हाँ ये गल उन्हें ठीक की अगर थी मैं कि गलत गलत की कहूंगा, थी? अगर मैं गलत कहूंगा तो फिर आपने कहना है गलत, अगर नहीं मैं सही अगर कहूंगा मगर तो ते फिर आपने शैतान दा अगली दरवाजा पिछली खुलदा है ना, अगर नहीं कहना विच, अगर नहीं पाईदा हुंदा। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ नहीं, जेल मैं में इसको कहता है गलत कि कहूंगा। अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। चलो हम अगर नहीं कहते ना मगर कहते, मैं अगर मगर को जुमला ही नहीं साथ लगा। अच्छा ਇਹ ਗੱਲ ठीक है ਉਹਦੀ कि गलत है? इस गल उन्होंने 2 बनते हैं इसके तो। एक एक यहाँ बटा तो 1/2 कि 1/3? मैं फिर कहूंगा 1/2 तो आपने फिर पकड़ लेना। चल यार ये बंदे ना मैं की मैं गल इसके करा मौजू में बात ही नहीं करना उस्मान चाहता। ओए मियां तमूर ओए कोई बल्कि लोधी भी आ गया लोधी कोई हल कड यार है कि ਇਹਨੇ ਖੱਪ ਖਪਈਆ ਪਾਇਆ ਹੀ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1/2 ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਗਰ जी नहीं मैं ये कह रहा हूँ मुफ्ती साहब मैं एक गल करना चाहना, वैसे एक गल एक पॉइंट ਭਾਜੀ लेना ਮੁਹਤਰਮ चाहना। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਡ ਪਾਓ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 1/2 ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ये ਪੈਡ देखो ਪਾਓ। ये आगे की बात पीछे ਤੇ ਉਹ लेके आ ਜਿਹੜਾ गया ना, मैंने पहले ਖੂਨੋ कहा था ਖੂਨ कि ਹੋਇਆ ਨਾ मैंने एक ਕੱਪੜਾ, बात सही ਉਹ कह रहा ਇਹਦੇ हूँ तो ਮੂੰਹ अगली ਦੇ पिछली ਤੁੰਨੋ सारे मिक्स हो ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। जो उसने ਤੇ पहले ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਬਲ ਆਏ ਨੇ, ਰੇਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਰਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ उस्मान कर भाई। मैं म्यूट हो रहा हूँ। जी तैमूर भाई रेबल आए हैं, इनसे बात कीजिएगा। भाई माजरत के साथ आप ही बात कीजिएगा। मैं सिर्फ फवाज को एक जवाब देना चाहता हूँ कि अगर फिरकों की दुकानें भी बंद हो गई हैं और मिर्जा जूनियर जेल में भी रोंग है, तो फिर वो एक ही हल बचता है, सेकुलर और एथियस्ट। बिल्कुल लोधी भाई आप करें, रेबल साहब से बात करें, ये शायद मिर्जा इंजीनियर के फॉलोअर हैं जी। क्या हाल है आपका? जी रेबल साहब आपकी बात नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम मनतबालुदा। अच्छा ये ऊपर उस्मान भाई के आप जहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे 2 शक्लें आपको नजर आ रही होंगी, इसके बारे में क्या नजरिया है आपका? सर उनको छोड़ें, आप अभी जो बात कर रहे थे कि इंजीनियर ने पैड्स की बात की है कि 2 पैड्स लेके जाने चाहिए,
تو یہ تو خیر میں نے سنا نہیں ہے، لیکن اگر کی بھی ہے نا تو اس میں کوئی غلطی، اس میں غلط مجھے بات بتا دیں کہ اس میں غلط کیا ہے۔ چلیں آپ کو نا شروع سے سناتے ہیں، شروع سے سناتے ہیں۔ اوئے قادیانی جی اوئے اے دا نام سی کیا بات ہے جی مفتی صاحب، کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ بڑے زبردست مفتی نہیں ہیں۔ آواز مسلمان پہچانی ہے آپ سے مسلمان آپ سے بات کرے، آپ اس کو نہیں قادیانی یار بنا دیتے ہیں۔ دسو کل تو اللہ صحیح آپ مرزا کو سر قادیانی اللہ دے کا بارے خوف ہے کہ مرزا قادیانی دے بارے آپ تہاڈا کو کی موقف ہے؟ آپ کو مجھے سر ایک بات بتائیں، آپ کو اللہ کا لوتی خوف ہے پوچھی کہ ذرا نہیں؟ آپ نے لوتی کل پوچھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جی ضرور جانا ہے۔ آپ ریبل صاحب یہ بتائیں، جو میں نے پہلا سوال کیا ہے کہ یہ جو دو منحوس شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا ابھی تک۔ سر قادیانی جو ہے نا وہ کافر ہیں، پکے کنفرم کافر ہیں۔ قادیانیوں کی بات نہیں ہم نے کی، مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی ان کا باپ ہے تو وہ بھی کافر ہے نا، اس کو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان اچھا ہے۔ ٹھیک ہے اصل میں نا آپ کی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز ایک قادیانی سے مل رہی تھی، میں نے اس لیے ٹھیک ہے۔ اچھا تو بھائی مرزا اندازہ نہ جونیئر لگایا جیلمی کے کریں، بارے کل میں اللہ کو جان دینی ہے ہم مرزا نے، جونیئر سب پہ جیلمی کے فتویٰ بارے نہ میں لگا کیا کریں۔ موقف ہے آپ جناب کا؟ مرزا جونیئر جیلمی جی مرزا انجینئر صاحب کے بارے میں موقف ہے کہ وہ عاشق رسول آدمی ہے اور صحیح پکا ہو گیا، مسلمان ہے۔ مطلب یہ کہ میں پھر صحیح سمجھا نا، آپ تو قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں۔ جو مرزا ہائے جونیئر جیلمی ہے یہ مرزا ہائے، غلام قادیانی سے بدتر ہے ہمارے نزدیک۔ تو آپ کے کہنے سے کوئی ایسا صحیح ہو بن گیا، نہیں صحیح جاتا، نہیں، آپ چلو جو مرضی کلیئر ہو فتوے گیا، آپ لگاتے لودھی ہیں، سے ہی آپ بات کے کریں، کہنے سے کوئی بات لودھی سے ہی آپ کے کریں، کہنے سے کوئی ایسا نہیں بن جاتا۔ مرزائیوں کو ہم قادیانیوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ جی لودھی بات کریں۔ جی ریبل صاحب، آپ کہہ رہے تھے یہ دو پیڈز والی بات اس کی آپ کو اچھی لگی ہے، تو اس سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، جو تین باتیں وہ دوسری طرف کے جو بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی وہ تین باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا، آدھی بات سے اتفاق کرتا ہوں، جس سے آپ نے پوری بات سے اتفاق کر لیا۔ تو پہلی بات اس نے یہ تھی کہ توحید کے بعد اس کو سیکس ڈسپلن پسند ہے، یہ بات آپ کو صحیح لگتی ہے؟ کون سی بات سر؟ وہ کہہ رہا ہے توحید کے بعد مجھے سب سے زیادہ پسند سیکس ڈسپلن ہے۔ سیکس ڈسپلن سے ذرا آپ اگر غور کریں، آپ اس کی بات پوری سنتے پھر آپ کو سمجھ میں آتی کہ غور وہ نہیں یہ نہ بات کرتا، کیوں کر رہا ہے۔ نہیں میں غور نہیں کرتا، آپ غور کروائیں مجھے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ توحید کے بعد آپ کو سیکس ڈسپلن پسند ہے؟ جی بالکل ہے۔ یعنی کہ توحید کے بعد آپ سیکس ڈسپلن کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ اس بات سے آپ متفق ہیں مرزا صاحب کی؟ جی اس نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ نہیں، ہمیں اسلام تو کے اندر سمجھاتے سیکس نہیں نا ڈسپلن جی، اس لیے ہے کہ آپ عورتوں کو الگ نہیں سے ہم نہیں سمجھتے رکھیں گے، ہم مردوں کو الگ سے رکھیں گے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو تربیت دیں کہ آپ نے کس کے ساتھ ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ تربیت ماں باپ ہی دے سکتے ہیں۔ آپ اس کو بات سیکس بعد میں ہوگی نا، ایجوکیشن کے نام پہ غلط کر دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے ریبل صاحب، آپ ہماری تربیت کیجیے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ توحید کے بعد سیکس ڈسپلن جو آپ کو پسند ہے، یہ کوئی قرآن پاک کی آیت اس کے اوپر کوئی پیش کر دیں یا کوئی حدیث مبارکہ پیش کر دیں؟ میرے بھائی کچھ باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ تو قرآن کے یعنی اندر کہ یہ جناب قرآن توحید حدیث کے بعد تیار کرنے کا کہانیاں کرا ہم رہا ہے۔ رسالت پہ آئیں گے، حج پہ، زکوٰۃ پہ، یہ چیزیں بھی ہیں۔ میں وہ صرف ایک بات اچھا سمجھانے کے لیے کہہ رہا اچھا تھا مجھے یہ کہ بتائیں اسلام کے اندر ریبل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، اچھا جب آپ کی بیٹی ہوگی، بیٹی ہے آپ کی؟ جی میری بیٹی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر اچھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے اپنی بیٹی کو یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے یہ دی ہے؟ سر میری بیٹی ابھی 3 سال کی ہے۔ اگر آپ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ٹھیک غرض ہو سے گیا کرنا ٹھیک چاہتے ہو ہیں تو گیا، میں آپ کے اگر ساتھ جب ڈسکشن کروں گا، لیکن آپ بقول اگر ایسی غلیظ قسم کی باتیں بات کریں تو گے سنیں نا جس جی طرح ریبل آپ کے صاحب، لوگ کرتے ہیں تو اب وہ آپ پھر بات ہائپر نہ سمجھنے ہو، اب سمجھانے سے ہائپر نکل نہ جائے ہو، گی۔ بات سنیں نا ہائپر میں میری بات لازم ہوں سنیں۔ گا، آپ کو تھوڑا جب اسلامی طریقے سے آپ کو سمجھنے سمجھانے کی بات کرنی جب آپ چاہیے۔ کی بچی 12 سال کی ہو جائے گی پھر آپ سیکس ایجوکیشن دیں گے اس کو؟ بالکل، میں تو اپنی بیوی کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ میری بچوں کو تم ایسا ماحول دو، ان کو پتہ ہو کس کے ساتھ ملنا ہے، کس کے ساتھ نہیں ملنا، کس کو کیسے ملنا ہے، یہ ساری ٹھیک طریقے ہو میں گیا ابھی بھی اپنی بیگم کو کہتا ہوں کہ بچوں کو ٹھیک ہو سمجھایا گیا، کرو تم۔ یعنی کہ یہ سن لیں جی یہ سارے سیکس ادھر ایجوکیشن 36 ہوتی ہے، آپ اس کو یہ نہیں نہ کریں۔ صحیح، لوگ اوے یار ان سے میں ذرا کام مصروف ہوں، ان سے یہ پوچھیں کہ ملنے ملانے کا نام سیکس ہوتا ہے؟ نہیں سیکس ڈسپلن سکھانا ہے آپ نے ہمیں سیکس ڈسپلن کا بتانا یعنی ہے۔ کہ کاروائی کنج پانی ہے۔ ہاں جی یہ بتانا ہے آپ نے۔ آپ ایک دفعہ اچھا دیتے ہیں پھر میں ٹھیک ہو بولوں گا۔ گیا استاد محترم، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ سیکس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے، کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا۔ اچھا مجھے یہ جو 12 سال کی ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی سیکس ایجوکیشن دوں گا، اچھا یہ یعنی کہ پھر جو مرزا انجینئر نے لاکھوں
لوگوں کے سامنے اپنی رجوں کے انڈر ویئر کی باتیں بتائی ہیں، اس کے مینسز کی باتیں بتائی ہیں، سیکس ایجوکیشن کی باتیں بتائی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل صحیح میں سمجھا؟ انڈر ویئر کی باتیں سر میں نے نہیں سنی، آپ سے سن رہا ہوں کیا باتیں کی ہیں اس نے، میں سنوں گا نہیں تو میں اس پہ جواب کیسے دوں گا؟ بس یہ ہے نا کہ پھر آپ نے کلپ نہیں سنا، آپ گفتگو کرنے آ گئے یار ویڈیو میں ذرا تھوڑے کمے لگا، ویڈیو دوبارہ چلانا، اے ویڈیو شروع تو ہی سن لو۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند، دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند، دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند۔ میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری لگے۔ دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا کہ سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں، ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے۔ بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا۔ چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا ہے تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور لڑکے بھی اسی طریقے، میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا، تو وہ بچی پورے دن دھوتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے، تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ۔ پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں۔ سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے۔ میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اب اللہ کرے وہ کبھی دن ہے، میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ، یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے۔ جی یہ والی ایجوکیشن ضرور آپ نے دینی ہے۔ میں سر انجینئر صاحب کی الف سے لے کے یہ تک ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ جی ہیلو السلام علیکم، ویٹ میری بات سنو، ایک منٹ میری بات سنو نا، ایک منٹ، یہ اوپر جو جس نے پوسٹ لگائی ہے، بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا جی، کھل کے بندہ ایک سامنے عمر کیا نہیں میرے بھائی، عمر کیا نہیں میرے بھائی، آپ جذباتی نہ ہوں، آپ کو یہاں پہ گالیاں بھی ملیں گی، یہاں پہ آپ کے بچوں کی عزت اور عظمت پہ نشانے بھی لگائے جائیں گے، تھوڑا جذباتی نہ ہوں، سنیں، یہ اسلامی لوگ ہیں، اسلامی لوگوں کو سنیں آرام سے۔ نیچے سے کمنٹ ہائڈ کر دیں، سارے کمنٹ ہائڈ کر دیں، ان سب بندوں کو بلاک کر دے تاکہ کوئی سچ بولے نہیں غلطی سے۔ چلیں اب بات کریں عثمان۔ چلیں جی شکر ہو گیا، انہوں نے ویڈیو پوری سن لی ہے، اور پوری سن کے انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس پہ ہر ایک لفظ پہ ایمان لے کے آتا ہوں اور متفق جی ہوں میں اس کے ہر اوپر۔ بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، اتفاق کر لیا، مان لیا آپ نے تو۔ لوگوں کے کامنٹس کھولیں سر، لوگوں کے کامنٹس کھولیں، لوگوں کو پتہ چلنے دیں۔ آپ کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں، کیوں لوگوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں؟ بولنے کی آزادی دیں لوگوں کو۔ ہم کہتے ہیں توجہ پوری گفتگو پہ ہو، لوگوں کی کمنٹ پہ نہ ہو، توجہ گفتگو پہ ہو۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی بچی ابھی 3 سال کی ہے، اس نے خود کہا ہے کہ میں 3 سال کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، 2-3 سال نہیں، جبکہ وہ 10-12 سال کی ہو جائیں گی نا، تو آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو پھر آپ اپنی بچی کو ایجوکیٹ کریں گے؟ اب مجھے بولنے دیں گے ذرا کھول کے؟ جی آپ بولیں۔ بار بار آپ یا مفتی صاحب درمیان میں ٹوکیں گے مجھے؟ جی میرے بھائی، اس نے آپ کو بڑے زبردست طریقے سے سمجھایا ہے کہ یار ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن یہ دینی چاہیے کہ دیکھیں لڑکیوں کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، اس کے بعد لڑکیوں کے مینسز۔ معذرت ایک منٹ، آپ بات کر لیجئے گا ریبل صاحب، یہ آپ کو سمجھایا ہے بیچ میں سے نکالنے، یہ غلط بات ہے بھائی، ہماری تو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گئی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی گنتی شمار میں نہیں ہے، یہ تو مرزیوں کو ہی اس نے سمجھایا ہے نا۔ آپ یہ کہیں کہ اس نے ہمیں سمجھایا ہے، یہ بات کہیں آپ، یہ بات ایک منٹ سن لیں، یہ بات آپ نے نہیں کرنی، 3-4 دفعہ آپ کر چکے ہیں جی، آپ کو یہ بات سمجھائی، ہمیں کیوں سمجھائی ہے جی؟ ساڈا کوئی دین مذہب ہی نہیں، ساڈا کوئی دین نہیں ہے، جو مرزا جونیئر جیلمی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، مرزا جونیئر جیلمی کا اپنا دین ہے،
जी उस्मान बात करें। नहीं तो पहले ईद टैक्स डिसिप्लिन है, इसके ऊपर कोई हवाला जा तो हमें कोई देना कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि ईद के बाद टैक्स डिसिप्लिन अच्छा है, इसका कोई हवाला तो दे। मेरे भाई उसने एक सिंपल बात आपको बताई है सिंपल बात का हवाला तो ईद के बाद, अभी मुझे बोलने देना मेरे भाई, यार कभी आप कह रहे हैं आपको बताइए, फिर आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं आपको ये बात बताई है, फिर आप कह रहे हैं कि आपको ये बात बताई है। ओ मेरे भाई हम सब मुसलमान हैं, नहीं सब हमको पाकिस्तानी हैं, नहीं उसने तुमको, पाकिस्तानी उसी बात हमको पे है नहीं, ना। हमको नहीं तुमको, आप कहे मुझे अच्छा, चलो बताइए, जी, उसने- हमें बताइए, उसने हमें- कादियानियों उसने को हमें ये बात बताइए, समझाई है, मरज़इयों को बताइए, उसने हमें- ये कहें। अच्छा उसने- हमें ना उसने हमें ये हमें ना उसने अपने हमें ये दीन बात समझाई है। अपने दीन में आप हमें ना डालें, बराए करम अपने अच्छा, दीन मजहब में हमें शामिल ना करें। हम तो लानत मुफ्ती डालते साहब हैं खुदा का ऐसी खौफ तालीम करें, पर। आप पता नहीं कैसे मुफ्ती अब हैं, आप पता नहीं कैसे अब मुफ्ती हैं, आप आपको लोधी भाई किसने ने भी मुफ्ती आपसे बना सवाल कर दिया, मैं लिया तो है इस कि बात वो पे हैरान हूँ। तो ईद के बाद कैसे सेक्स जज्बाती डिसिप्लिन लोगों को पसंद है जी आपको, तो आपको यानी कि मरज़इयों को आपको सेक्स डिसिप्लिन पसंद है, तो ये बात इस पर आप और मुत्तफिक यार हैं कि तुम तो लोगों ईद को के पहले बाद तो ये ही पता कि सेक्स डिसिप्लिन होती क्या चीज़ है, तुम लोगों को पहले यही चले नहीं वो पता, सबसे आपने बड़ी बताना परेशानी ये है, है। वो मरज़ई जी वो आपने बताना है कि अकीदा तौहीद के बाद अकीदा, उसने बोला है अकीदा तौहीद के बाद सेक्स डिसिप्लिन का जो अकीदा है ना वो पसंद है इसको, ठीक हो गया। अब आपने इस पर इत्तेफाक किया या नहीं किया? मैं तो कहता हूँ जी, मैं इंजीनियर की इस पूरे क्लिप से इत्तेफाक करता हूँ, उससे कोई ठीक गलत हो बात गया, नहीं तो है। वो ठीक हो गया। ये सुन ले जी, इनको सेक्स डिसिप्लिन तौहीद के बाद सेक्स डिसिप्लिन पसंद है मरज़इयों कादियानियों को, ठीक हो गया जी। अब आप तशरीह कर दें सेक्स डिसिप्लिन की, ताकि फिर ये ना हो कि कहें कि मेरी सुनी नहीं बात जी। नहीं ऐसे करें आप पहले, और आप इंजीनियर साहब और ये समा क्या नाम है, समामा भाई, ये जितने भी हैं ये सारे आप अपनी अपनी कर लें, उसके बाद कोई टाइम हुआ तो मैं भी बोल लूँगा, पहले आप बोल नहीं खुल के। चले मरज़ई जी, सेक्स डिसिप्लिन क्या होता है वो ज़रा बता दें कि तौहीद के अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद नहीं अकीदा तौहीद के बाद, ठीक है जी। चलो अच्छा ये इसका हवाला देना, हवाला करें, नीचे देखें। ओ भाई हवाले पे मैं अगर आया तो आप मुझे हवाला देंगे कि ये आपने जो पीरी मुरीदी का कारोबार चला रखा है, इसका हवाला कहाँ से निकालेंगे आप? हवाले आपको मिलेंगे, आप मुझे ये बताएं नहीं आप मुझे बता देना, ये आपने जो गौस पाक के बारे में अकीदे बना रखे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब को आपने गौस बना रखा है, इसका हवाला मुझे दे दें। आप मुझे हदीस के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम निकाल के दे दें। धोती आपका जो स्पीकर है वो ठीक नहीं है, आवाज बिल्कुल डल हो जाती है जब ये रिबल साहब बात करते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आती। आप अपने माइक को ठीक करें, अपनी आवाज को दुरुस्त करें। उतनी देर उस्मान बात करते हैं रिबल साहब जी। सेक्स डिसिप्लिन के बारे में बताने लगे थे रेबल साहब, शुरू हो जाए जरा सेक्स डिसिप्लिन। और फिर अभी आपने भागना भी शुरू कर दिया है कि मैं हवाला कोई नहीं दूंगा, मैंने जब टटर करनी है। चलो जी, अकीदा तो वो अकीदा सेक्स डिसिप्लिन सुनाना शुरू करें। अच्छा बातों, अगर हवालों पर बात होगी तो फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि मुझे अच्छा मरज़ई कुरान और हदीस के अंदर से, कुरान और हदीस के अंदर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब का नाम निकाल के दें, फिर मैं आपसे ये ये भी देखें जी। पूछूंगा। मरज़ई अब भागने लग गया है, कहता है जी मुझसे हवाला ना तलब करना, मैं आपसे क्यों भागूंगा, मुझे आप जैसे लोगों से भागने की क्या भाई। जरूरत है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी और सारे बाबों की तो दुकानें बंद कर दी हैं मिर्जा जूनियर जेलमी ने। अब आप लोग किस मुंह से शेख अब्दुल कादिर और औलिया अल्लाह की इन बाबों की बातें करते हैं, बताएं। दुकानें तो बंद हो गई हैं और हस्बैंड डन कर दिया हुआ है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो बस ठीक है, फिर क्यों करते हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जब दुकानें बंद हो गई हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सवाल क्यों करते हैं, बताएं। नहीं आप वो हवाले कर रहे थे इसलिए आपको नहीं ठीक हो गया, चलो ठीक है। मतलब दुकान एक बंद हो गई है, अब दुकान खुलेगी तो हवाला निकलेगा ना बाहर, दुकान तो बंद हो गई है। फिर आप हवालों पे बात ना करें ना, फिर हम भी नहीं हवाला पूछेंगे आपसे। वजह लेकिन आपके दीन की बातें ना हमसे आप लोगों से पूछें। तो फिर मैं भी आपके दीन, ये बरेलियों का सारा ओ दीन भाई हमारी दुकानें बंद हो गई हैं। ओ भाई जी उस्मान जी, हाँ जी, ये पॉइंट मुफ्ती साहब आप मैं समझ गया हूँ। मैं तभी तो कहा कि मरज़ई दौड़ गया है कि मैं हवाला नहीं देना, मैंने टटर करनी है। तो मरज़ई अब बताओ कि मैं किस चीज का हवाला बताना शुरू करो। बताएं ना आप। ये सारे मरज़ई सुनने के लिए तैयार हैं कि जनाब मरज़इयों को अकीदा तौहीद के बाद सेक्स डिसिप्लिन पसंद है, और सेक्स डिसिप्लिन होता क्या है मरज़ई, वो अकीदा बताएगा जी आज हमें। चलो जी शुरू हो जाओ।
क्या बात है जी। पहले तो ये मुफ्ती साहब के सामने आप बैठे हैं, मैं आपको ये मरज़ई वाली जवाब थोड़ा सा अच्छा वो समझा बाद दूं में करते हैं, कि वो बाद में कहानी सुना लेना, अभी वो सेक्स डिसिप्लिन सुना दो हमें बस। अच्छा चलो ये सुनो जी, फिर तुझे आप तमीज़दार भाई ज़रा सुन लें, तमीज़ वाले भाई हाँ जी साहब। सुनाओ जी मरज़ई जी। ये सेक्स डिसिप्लिन से मुराद होती है कि बच्चों को इतना पता हो कि जब देखो जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनको मेंसेस आते हैं, उनको पता हो कि मुझे इस एज में, यानी कि आप 10 साल की 12 साल की बच्ची होती है तो उसको आप समझाएं कि यार अगर वो बाहर कहीं स्कूल में है उसको मेंसेस टॉपिक शुरू कर लिया ना हो, उसको पता हो। लोधी भाई एक मिनट, ये लोधी भाई एक मिनट, उनको बोलने दे। नीचे भाई बड़े बंदे महजूज हो रहे हैं इस गुफ्तगू से कि भाई अकीदा तौहीद के बाद मरज़इयों को सेक्स डिसिप्लिन पसंद है। अब वो सेक्स डिसिप्लिन बता रहा है कि इनकी औरतों को मेंसेस आते हैं, तो फिर ये कैसे सेक्स डिसिप्लिन जो है ना वो मेंटेन करते हैं। चले जी शुरू हो जाए। आपकी औरतें अलग हैं, आपकी अम्मी, आपके भाई, आपकी चले बहनें शुरू हो अलग जाए हैं। वो मरज़ई मेरी जी, भी हम तो माँ है, लाना मेरी डालते भी हैं, बहन है, आपकी हम लाना आपकी बहन, डालते आपकी हैं बेटी, कि मेरी भी आप माँ अपनी बहन औरतों है। के बारे में बताएं कि सेक्स डिसिप्लिन नहीं, आपको आप अकीदा अगर तौहीद के जब बाद आप पसंद इस है तरह तो आप औरतों क्या पे करते हैं? अटैक करेंगी तो मैं आपको फिर लाजिम समझाऊंगा मेरे भाई। आप नहीं वो अपनी आपको बहन को बहन समझाया, जो समझते हैं, आपको दूसरों को समझाया बहन ना को भी मिर्जा बहन इंजीनियर ने, वो आप समझें, बताएं। दूसरों की बेटी की भी इज्जत जो करें। आपको आप कौन सा मिर्जा इस्लाम इंजीनियर ने फैला रहे हैं, समझाया यहाँ वो पे बैठ बताएं। के जालत फैला रहे हैं। मरज़ई जो आपको मिर्जा इंजीनियर ने समझाया ना सेक्स डिसिप्लिन पसंद है, वो समझाएं हमें भी। आप जल्दी किसी जल्दी को भी करें। मरज़ई बना दें, किसी को भी कादियानी बना दें, कौन सा इस्लाम तो आप फैला रहे हैं एक यहाँ पे मरज़ई बैठ के। उस दिन में मैं तुम्हें बताया था कि मरज़ई हम क्यों कहते हैं। सेक्स डिसिप्लिन बताना शुरू करो, जल्दी करो। तो फिर तुम तो मान आप, फिर मैं वो गुस्से वाली बात, बंदा जब चलो थोड़ी देर शुरू चुप कर भी दो करता यार है ना, सेक्स दूसरों को डिसिप्लिन। बोलने भी देता है। तमाम मरज़ई सुनने के लिए बेचैन है कि भाई अकीदा तौहीद के बाद सेक्स डिसिप्लिन मरज़इयों को पसंद है, और आज जनाब रेबर मरज़ई जी हमें सुनाएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। क्या चले बात जी, है, आप सच्चे पक्के चले शुरू हो मुसलमान जाए। हैं, आप आज के रसूल हैं, हम मरज़ई सही, आप कुछ हो जाएं। चले शुरू हो वो जो फैसला मरज़ई तो जी अल्लाह का होना, रूह सानू जाके दसो होगा भी तो कौन सही, मरज़ई है कौन तबलीग भी मुसलमान तो है। करो सानू, अब मैं मरे हो और तो मरो, सर सेक्स तबलीग भी तो डिसिप्लिन के करो। बारे में और मैं आपको क्या बताऊं कि आपको अपने चले बच्चों शुरू को हो। एजुकेट करना पड़ता चले है अब मैं अपनी बीच कि में यार। बोलूंगा, अब आपने सुनाना है। अपनी मैं बीच में बोलूंगा, सॉरी भाई, अपनी मैं बोलता सेक्स के, आपके सेक्स के दौरान नहीं बोलूंगा। चले जी शुरू हो जाए। अच्छा जी, सेक्स डिसिप्लिन सर ये है कि आपको बच्चों को गाइड करना पड़ता है कि जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसको पता हो कि अगर खुदा न खासा वो घर से बाहर है और उसको मेंसेस हो जाते हैं, माहवारी हो जाती है, उसको पता हो कि उसने किस तरह रिएक्ट करना है, वो परेशान ना हो जाए। वो फिर लोगों से जनाब और लोगों से न पूछती फिरे कि ये क्या हो गया है। जिस तरह वो बच्ची की मिसाल दे रहे थे कि स्कूल में बच्ची के साथ ऐसा हुआ, और ये हो जाता है, इंसान है हम, हमें नहीं पता कि जब बच्ची बड़ी होगी तो उसकी माहवारी उसके घर में शुरू होगी, या वो स्कूल में बैठी हुई है, मदरसे में बैठी हुई है, कहाँ पर बैठी है, क्या पता कब पीरियड शुरू हो जाए। तो बच्चों को माँ का काम होता है कि अपनी बच्ची को गाइड करे कि आप बेटी तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें किसी भी टाइम पे मेंसेस शुरू हो जाते हैं, तुम्हें परेशान नहीं होना, ये एक नेचुरल, एक कुदरती अमल है और ये बच्चों के साथ होता है। अब बेटे की बात करें तो बेटे को भी पता होना चाहिए कि बच्चा जब आपका 12-14 साल का हो जाए, उसको पता हो कि इत्लाम क्या चीज़ होती है, ये कैसे हो जाता है। बच्चा जब जनाब सुबह उठे उसको पता ही ना हो ये क्या हो गया, वो परेशान हो जाए, फिर उसको नहाने का पता हो, उसको गुस्ल का पता हो। उसके बाद इंसान के, जब इंसान बड़ा होता है, इंसान के जिस्म पे फालतू बाल भी आते हैं, उनको ये सेक्स डिसिप्लिन होती है कि उनको पता हो कि हमें बाल कहाँ से कब उतारने अच्छा हैं। ये बाल भी सारी सेक्स उतारने हैं, ये डिसिप्लिन भी की सेक्स चीज़ें होती डिसिप्लिन में हैं आता है। अच्छा बाल जी, ये उतारने सेक्स हैं। के साथ लिंक्ड हैं सारी चीज़ें, अच्छा ये सेक्स के साथ लिंक हैं सारी चीज़ें। अच्छा लेकिन ठीक हो आप गया, जहालत के एक ऐसे गले ठीक में हो गिरे गया। हुए हैं, आपने कभी किसी और को न ठीक है जी, समझना है और न ठीक है, आप समझने बोल देना ही है आपने। जाए बोली जाए बोली जाए बोली जाए। जी जी। आपने जहालत में लोगों का अच्छा मजाक बनाना सादे है, मोहतरम, कादियानी बनाना है, सादे यहूदी मोहतरम, बनाना है, इनका यही कलमा तालीम क्या आप दे रहे हैं बनेगा? लोगों को यहाँ बैठ इनका के। मरज़इयों का कलमा क्या बनेगा तौहीद के बस बाद? ये जहालत सेक्स फैलाएं आप यहाँ डिसिप्लिन है बैठ के, तो लोगों को गुमराह करें इस्लाम के नाम पे। तो ये ला मुफ्ती, मैं इलाहा तो इनको मिनी मुफ्ती खुदा मानने नहीं से भी नहीं, इनकार करता हूँ। इल्ला मुझे इल्ला मुफ्ती ਇਹਨਾਂ नहीं ਦਾ इल्ला कहते ਕਲਮਾ लोग। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਲਾ ਸੈਕਸ ਇਲਾ ਔਰਲ ਸੈਕਸ। तो ये इनका मुफ्ती जो है, है ये वो जबान चेक करें कलमा तो मुफ्ती साहब की, यही बनना माशाल्लाह क्या चाहिए जबान है। कि ये देखें जी, रेबल मरज़ई ने हमें अकीदा तौहीद के बाद जो सबसे पसंदीदा चीज़ है वो सेक्स डिसिप्लिन इन्होंने सिखाया है हमें। तो इन्होंने वो अपना एक कलमा जो है वो भी हमें नया लॉन्च करके ये सुनाएंगे हमें बाद आपको में। पता है, मैं अब एक मिनट मुझे देंगे, मैं आपको एक अच्छा बात बताऊं। अब अच्छा आपको चलो देते ठीक है, हैं। हम अगली वीडियो पे आते हैं। उस्मान भाई नीचे मुफ्ती साहब आए हैं, इनको थोड़ा सा टाइम दे दें पहले। अच्छी जी 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 ठीक हो गया।
جی ریبر استاد جی صاحب اپنا محترم مائک میوٹ کر لیں, آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے. مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں, وہ گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام کو اور بالخصوص استاد اکرامی آپ کو وعلیکم اللہ تعالیٰ آپ کا صحت و عافیت کے ساتھ سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے. آمین. آپ کو صحت و توانائی نصیب فرمائے, شفا کاملہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی صحت یابی ہمارے لیے ہمارے دلوں کی قرار ہے اور باعث اطمینانیت اور سکون ہے. اصل میں بات یہ ہے استاذ گرامی کہ یہ چونکہ آج یہ مرزا جونیئر جیل میں جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو چل نکلی ہے. میں اس ساری گفتگو سے تقریباً گھنٹے ڈیڑھ سے میں گفتگو سماعت کر رہا ہوں. اس سے پہلے وہ نجیب صاحب اور اس قسم کے وہ لوگ تھے. ان سب لوگوں کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا مرزا جیل میں کوئی بھی بات کر دے تو یہ اس کی بات کو صرف تسلیم نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ اس کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. جیسا کہ اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. ایک ہوتا ہے بات کو تسلیم کرنا یا ماننا, وہ لفظ استعمال نہیں کیے. لفظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی عام گفتگو کے اندر بھی کہ مرزا جیل کی ہر بات پہ ایمان رکھنا ہے. اس قدر اس شخص نے ان لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رکھا ہے, یا جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس قدر گرفتار ہیں اس کی ناجائز محبت کے اندر کہ مرزا جیلمی کی جو بھی بات ہو, حتیٰ کہ وہ گستاخیاں ہوں, مغلظات ہوں, بکواسات ہوں, یا اس طرح کے اس کے جو بھی شوشے ہوں, یہ صرف اس کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو لفظ ایمان دیکھ لیں کتنا بڑا یہ لفظ ہوتا ہے. یعنی ہر سچائی اور صدق اور ایمان کا مقام اور مرتبہ اور اس کا شان شروع ہوتا ہے. تو یہ مرزا جیل میں کی ہر بات پہ ان کا ایمان رکھنا یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. حتیٰ کہ یہ اس کی غلطیوں کو جو کہ اغلاط ہیں اور غلطون ہیں یہ اس کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں. وہ صحیح بات کہہ دے تو بھی اس کو ایمان سمجھتے ہیں, وہ کوئی باطل بات کہہ دے تو یہ کہتے ہیں ہم اس کو بس منوان مانتے ہیں, جو اس کے منہ سے نکل گیا ہے, جو اس نے کہہ دی ہے. یہ لوگ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں, اس کے لیے محنت کرتے ہیں, اس کے لیے ہر طرح کی جو صعوبتیں ہیں وہ برداشت کرتے ہیں, اور ہر طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. اور مرزا جیلمی ان کا اپنے مرزا جیلمی کے بارے میں تو ہر قول میں ایمان ہے. مفتی زین العابدین شاہ صاحب ذرا ایک منٹ, عثمان کا میسج آیا ہے کہ وہ کافی دیر سے بیچارہ بیٹھا ہے, تو براڈ وہ ابھی ختم کرے گا. تو براڈ ابھی ختم ہو کے آصف بھائی, آصف موجود ہیں آپ؟ آصف جی جی شاہ جی السلام علیکم. براڈ کریں گے ابھی آپ؟ جی میں کر لیتا ہوں شاہ جی, کوئی بات نہیں. ہاں تو یہ عثمان بھائی کے بعد آصف بھائی کی براڈ کے اوپر ان کو فالو کر لیں سارے دوست. اور ایک چھوٹی سی بات صرف مفتی زین سن لیں جی, سن لیں ابھی, سن لیں جی. ہمیں اپنا کوئی او یار اپنے کوئی اپنا میسج مفتی صاحب ایک منٹ صرف مفتی زین صاحب کو میں بتاؤں گا کہ ہم انجینئر کی ہر بات پہ ایمان. خاموش ہو جائے یار, کھپ ڈالیے, انہوں نے جانا ہے. ہمارا ایک میسج سن لیں جناب. 10 روزہ ختم نبوت کورس ہم لانچ کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. ختم نبوت فورم کی جانب سے 10 روزہ ختم نبوت کورس ٹک ٹاک کے اوپر لانچ ہو رہا ہے, جس کے مدرس ہوں گے مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب. داخلے شروع ہو گئے ہیں, 13 داخلے ہو گئے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر گروپ بن چکا ہے, اور جنہوں نے داخلہ لینا ہو تو وہ جلد از جلد رابطہ کر لیں. عاجز کے نمبر پر رابطہ کر لیں یا میاں تیمور کے نمبر پر رابطہ کر لیں. یہ جتنے بھی ہماری ٹیم ہے ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کر لیں گے, آپ کو داخلہ مل جائے گا. تو کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا, سارے دوست داخلہ لیں گے. یہ راجپوت بھی آئے ہیں, راجپوت بھی پڑھیں گے, داخلہ لیں گے.
عثمان بھی داخلہ لیں گے, سمامہ لودھی بھی داخلہ لیں گے, آصف بھائی بھی داخلہ لیں گے, سب پڑھیں گے. اور ہماری جتنی ٹیم ہے ساری کی ساری ٹیم کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں رہے گا پیچھے. یہ 10 روزہ کورس ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, آسان سا. یہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ کلاس ہوگی. ویسے تو یہ کلاس سب کے لیے عام ہوگی, لیکن باقاعدہ ہم اس کی رجسٹریشن کر رہے ہیں. تو جن کی رجسٹریشن ہوگی ان سے ہم سبق بھی سنیں گے, انہی کو سبق پڑھائیں گے, اور انہی کو پھر نوٹس جو ہوں گے ان کو ہی دیں گے, کیونکہ کچھ نوٹس بھی دینے ہیں. تو اور آخر میں ایک سرٹیفکیٹ بھی ختم نبوت فورم کی طرف سے جاری کیا جائے گا, جو انہی رجسٹرڈ طلباء اور طالبات کے لیے ہوگا. یہ کورس سب نے کرنا ہے جن تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے. ابھی بہت بڑی تعداد ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھی ہے, یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد فیس بک کے اوپر بیٹھی ہے, جناب ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہیں. تو یہ سارے جو بھی سن رہے ہیں کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہے. ختم نبوت کا یہ کورس ہے, 10 روزہ یہ کورس ہوگا, اور اس کا نصاب میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. نصاب اس کا ہے کہ روزانہ ایک عدد قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث ختم نبوت کے موضوع کے اوپر, جہاں سے ختم نبوت کا موضوع ثابت ہوتا ہوگا, عقیدہ ثابت ہوتا ہوگا, تو وہ آیت اور ایک حدیث وہ آپ کو زبانی یاد کروائی جائے گی. 10 دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر آپ کو 10 قرآن کی آیتیں اور 10 حدیثیں آ جائیں گی انشاءاللہ. جی استاد محترم, میں چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب اپنی بات مکمل کر لیں, تو پھر اس کے بعد براڈ میں یہ صرف تعارف کروا لوں تو اچھا. نمبر 2, روزانہ ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث جو قادیانی پیش کرتے ہیں, تو اس کا رد یعنی اجرائے نبوت کے اوپر, ختم نبوت کے مد مقابل قادیانی اجرائے نبوت کے قائل ہیں, یعنی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. تو قادیانی جو قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھی اس کا آپریشن کیا جائے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو روزانہ کی 2 آیتیں 2 حدیثیں, مسلمانوں کا عقیدہ اور قادیانی عقیدہ, ان 10 دنوں میں آپ کو پڑھایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت زبردست قسم کا یہ کورس ہونے والا ہے. تو جلد از جلد آپ داخلے کلیئر کریں. داخلے کے لیے عثمان سے رابطہ کر لیں, راجپوت سے رابطہ کر لیں, لودھی سے رابطہ کر لیں, آصف سے رابطہ کر لیں, میاں تیمور سے رابطہ کر لیں. تو ہماری جتنی بھی ٹیم ہے کسی ایک سے بھی آپ رابطہ کر لیں گے تو آپ کو داخلہ مل جائے گا. مختصر سے اس کی فیس رکھی ہے ہم نے صرف 1000 روپیہ. اس کورس کی فیس 1000 روپیہ بس, اور آپ کو اتنا نالج ملنا ہے, اتنا نالج ملنا ہے چھڈ گلاں دیو. اور ٹیچر ہوں گے مفتی سید زین العابدین شاہ. تو میں چونکہ زیارات کے اوپر جا رہا ہوں, عراق, نجف شریف اور امام حسن, امام حسین اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہم, ان کے مزارات کے اوپر اور زیارات بزرگان دین پر جا رہا ہوں. تو نہیں تو یہ کورس میں کرواتا. تو یہ ہمارے طالب علم ہے, ہونہار طالب علم, اور زبردست قسم کے عالم دین اور زبردست قسم کے مفتی صاحب. تو یہ آپ کو یہ کورس کروائیں گے. میں اپنے نائب کے طور پہ, اپنے خلیفہ کے طور پہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ کورس کروائیں گے. آپ یوں ہی سمجھیں کہ جو میں نے پڑھانا ہے مجھ سے بھی بہتر یہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کورس آپ کریں, لازمی طور پہ کریں, کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہے. جی زین صاحب آپ بات کریں. جی استاد اچھا بات مختصر رکھیے گا پھر, کیونکہ عثمان نے جانا ہے تو نئی براڈ کے اوپر ہم بات کریں گے. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو مرزا جیلمی کی ہر بات کو اتنی حیثیت اور وقت دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہہ دے تو یہ لوگ, ان کا یہ عقیدہ ہے گویا کہ ایمان کا لفظ چونکہ استعمال کرتے ہیں, تو اب ان کا کہنا عقیدے کے طور پہ ہم لیں گے
خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس کی ہر بات پہ. تو ان کے عقیدے کے مطابق مرزا جیلمی تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ کرے تو یہ اس کا دفاع کرتے ہیں. لیکن مرزا جیلمی کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں، نبی آخر الزماں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ غلطیاں کرتے تھے، ان سے اجتہادی جو غلطیاں تھیں وہ ہوتی رہتی تھیں. اور یہ اس کا واضح طور پہ ہے. وہ کہتا ہے یہ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو آیات مقدسات ہیں یہ صرف قرآن کے بارے میں ہیں. یہ قرآن جو حضور ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی سے. آپ کا جو فرمان ہے اس کے اندر تو بڑی خطائیں ہوتی تھیں، اس کے اندر تو بڑی غلطیاں ہوتی تھیں. غلطی کا لفظ استعمال کرتا ہے، حضور تو بڑی جگہ پہ غلطیاں کر جاتے تھے. تو یہ اپنے خطابات میں اور اپنی تقاریر میں اس نے کئی مرتبہ کہا کہ اس آیت کا تعلق حضور کی حدیث کے ساتھ نہیں ہے. حضور کی حدیث کے ساتھ ہوتا تو پھر حضور کا جو فرمان ہے وہ غلطیوں سے مبرہ ہوتا، لیکن حضور کی باتوں میں اور حضور کی احادیث میں غلطیاں پائی جاتی ہیں معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ جو آیات ہیں یہ حضور کی احادیث کے حوالہ سے نہیں ہے، قرآن کے حوالہ سے ہیں. تو ان لوگوں کا عقیدہ مرزا کے بارے میں دیکھیں کیا ہے، اور جو مسلمانوں کے نبی ہیں یعنی نبی آخر الزماں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ غلطی تو کر نہیں سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ غلطیاں کیا کرتے تھے معاذ اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ابھی نئی براڑ کے اوپر مفتی زین صاحب بھی، آپ بھی آ جائیں، راجپوت آپ بھی آ جائیں، سماما لودھی آپ بھی آ جائیں، اور جتنے سن رہے ہیں سارے آ جائیں. آصف آپ اپنی براڑ شروع کریں، جا کے براڑ شروع. تو ادھر سے یہ براڑ شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے عثمان ختم کریں گے تو فوری طور پہ آپ نے آصف کی براڑ کے اوپر آ جانا ہے. تو تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پیار محبت والوں کا شکریہ، اور جن کی دکانیں بند ہو گئی ہیں اور جن کا دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا مرزا قادیانی نے اور مرزا جونیئر جیلمی نے، تو ان کو تو خصوصی میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی عظمتوں کو سلام، اور آپ لوگوں کے تعاون، پیار محبت شفقت کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ابھی آج کل جو دین جہلمیت ہے وہ جاری ہے، جاری و ساری ہے، تو دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں ان کا دین جہلمیت کیا ہے. تو ابھی یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے ایک دین جہلمیت کے ایک مرزئی صاحب بیٹھے ہیں، جواد علی صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو عثمان آپ براڑ ختم کریں، پھر نئی براڑ کے اوپر پھر گفتگو کرتے ہیں.